Okay, so welcome to all students in Indira Gandhi National Open University. It's the world's largest university, and in terms of enrollment, because we have a huge amount of students throughout the world. So we are in India, all of you know, and we are out of India also. In 15 countries, we are serving our education. Okay, so सबको मेरी तरफ से मैं रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर लक्ष्मण कुमारवाड़ यहाँ पे 2 साल से मैं रीजनल डायरेक्टर करके यहाँ पे काम कर रहा हूँ। तो आप सभी को इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको सबको वेलकम और बधाई, जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हुआ है। तो ये जो प्रोग्राम है आज का, ये सेमेस्टर बेस्ड स्टूडेंट्स, यानी कि जो जिनके एडमिशन सेमेस्टर बेस्ड है, यानी कि जैसे कि एमबीए एमसीए, ये सेमेस्टर बेस्ड, सेमेस्टर में एग्जाम होती है, सेमेस्टर में हर सेमेस्टर में एग्जाम होती है, और इसके बाद होती है ईयर बेस्ड, यानी कि एक एक साल के एडमिशन होते हैं, एक एक साल के बाद एग्जाम होती है, वो उनका वो अलग से। आप सभी लोग आप सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में आपने एडमिशन लिया है। तो आप सभी को आज जो भी मैं बताऊंगा वो एकदम कान खोल के सुनना है, ठीक है। अगर मेरी बात सब लोग आप लोग सुनते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। मुझे ये क्या करना है, वो क्या करना है, मुझे असाइनमेंट कब लिखना है, कब सबमिट करना है, कहाँ पे सबमिट करना है, ये ऐसे जो क्वेश्चन आपके मन में जो घूमते रहते हैं, वो इस वजह से घूमते हैं कि आपको पूरा मालूमात नहीं रहती है। You don't know the things at that time, you will confused. Okay, so that's why you have to listen what I am telling the carefully, along with Mr. Deshpande, Bharat Deshpande, who is assistant ASO, okay, assistant section officer, who look after the admissions in regional center Nagpur, and along with Mr. Rajesh Wasnik, who is also belongs to the our admission section. Okay, he resolved the problems coming from the students. He personally check the mails and reply the mails. Okay, if you call anybody to the regional center, no need to call. If you only you mail to us, what is your problem? Okay, so we will solve the problem. So because you have to listen first. Okay, so no need to email or call to the regional center. Okay, okay. So once again, I welcome to all the students, and before that, I appeal to the all the students. Okay, so subscribe the all channels, whatever Facebook, YouTube, Twitter, Telegram. Okay, so all channels you have to follow. Why I am saying this? Any information from us to send to you people, okay, then we send all the information through the channels, okay, whatever channels or social media. Okay, so that's why my appeal is what you have. I posted all the social media's links in a text box. Okay, you just click on that particular link. You have to subscribe the that particular social media. Okay, so we have a 7 to 8 thousand students in our regional centers. Okay, this is not possible to send an email, call a student, so it's not possible to add 1,000 students. Whatever suppose information we have to designate from our end to your end. Okay, so social media is the perfect platform. So designate the or send the some information to the students. Okay, अंडरस्टैंड। सो सब लोग आप यहाँ पे जो सोशल मीडिया अपना मैं जो टेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स में डाल चुका हूँ, वो सब आप लोग फॉलो कीजिए। कैसा होता है, अभी एग्जामिनेशन चालू हो गया तो हम लोग वहाँ पे नोटिस डाल देते हैं, आप लोग देखना है वो नोटिस और पढ़ना है और वैसा एक्ट करना है। तो आपका ये क्या होता है, बहुत सारे लोग रहते हैं आपके ध्यान में नहीं रहता है। ओके, तो एग्जाम डेट चली जाती है, एग्जाम डेट एक बार चली गई तो 1100 रुपये फाइन है। कितना? 1100 रुपये फाइन भर के आपको एग्जाम फॉर्म भरना है। उसके बाद और वो कुछ दिन रहेगा, उसके बाद एग्जाम फॉर्म बंद हो जाएगा, वो सेमेस्टर में आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। ठीक है, इसलिए सबको एक गुजारिश करता हूँ कि सब लोग आप सोशल मीडिया सब फॉलो करें हमारा। ठीक है, ये इससे कोई हमको कुछ लाभ नहीं है, कुछ नहीं, ये गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, या बाबा चलो ये सब्सक्राइब किए तो इनको कुछ ये मिलने वाला है वो मिलने, कुछ नहीं है।
ठीक है, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन डेजिग्नेट करने के लिए या सेंड करने के लिए हम लोग यूज करते. ठीक आहे. सगळ्यांना परत एकदा विनंती आहे की सगळं सोशल मीडिया त्यांनी फॉलो करावा, आम्ही ज्या आपल्या याच्यावर टाकलेलं आहे टेक्स्ट बॉक्समध्ये. ओके, आता पुढे आपण बघूया. आपण प्रेझेंटेशन दाखवतो मी तुम्हाला. ओके, हे प्रेझेंटेशन दिसते का सगळ्यांना? हो सर, दिसतंय. ओके ओके. हा, आता मी जे सांगतोय सगळ्यांनी मस्तपैकी आपलं ऐकायचं, कान माझ्याकडे ठेवायचं, डोळे स्क्रीनवर ठेवायचं आणि 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 तो आपल्या तोंडावर बोट ठेवायचं. बोट ठेवायचं म्हणजे आता काहीच विचारायचं नाहीये. ऐका, आता काहीच विचारायचं. जेव्हा मी सांगेन तुम्हाला की तुमचे काही प्रश्न असतील तर विचारा, असं मी जेव्हा सांगेन तुम्हाला त्यावेळेसच तुम्ही विचारायचं. तेव्हापर्यंत काही कोणीही विचारायचं नाही, त्यांनी फक्त ऐकून घ्यायचंय. तब तक आपको बोलना नहीं है जब तक मैं कहूंगा नहीं. ठीक है, जब तक मैं कहूंगा नहीं हिंदी और आप इंग्लिश बोलना प्लीज. नहीं. ठीक है, जब हम लोग बोलेंगे कि बाबा आपका कुछ क्वेश्चन है तब आपको बोलना है. ठीक है, अभी बीच बीच में आवाज आ रहा है, हिंदी और इंग्लिश आप म्यूट करके रखिए. ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में बोलिए सर. हाँ हिंदी में नहीं, तीनों भी लैंग्वेज बोलता हूँ मैं. 4-5 लैंग्वेज आते हैं मुझे, 5 ही भी लैंग्वेज में बोलूंगा. ठीक है, हिंदी तो इंग्लिश तो चलेगा ही. ठीक है, उसके साथ साथ और बाकी की लैंग्वेज में भी यहाँ पे मराठी लोग भी ज्यादा है. ठीक है, कुछ लोगों को मराठी लोगों को हिंदी नहीं आती है, तो कभी कभी बीच में मराठी भी रहेगा. ठीक है, चलेगा. ओके, so welcome to IGNOU. This is the induction program for the semester based students. Okay, now so this is the, all of you know the what this is the world's largest university established in 1985 as an act of parliament. Okay, Central University Act, that is. And we have a headquarters at the, where we have a headquarters in a Delhi. Okay, so we have a headquarters at Delhi. Okay, so just a minute. Yeah. Okay, so we have a headquarters at Delhi, and we are ranked number 1 in open university category in NRF ranking 2024 and 25 also. Subsequently, 20 NRF ranking 2024 and 2025, we got the number 1 ranking in a open distance learning university category. मैं फिर से बताता हूं, अपना जो यूनिवर्सिटी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी एनआरएफ रैंकिंग में, एनआरएफ रैंकिंग एक फ्रेमवर्क होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एनआरएफ रैंकिंग रहता है, गवर्नमेंट करता है ये सभी यूनिवर्सिटी की. हिंदुस्तान में जितने भी यूनिवर्सिटी है उनका रैंकिंग देता है कैटेगरी वाइज. जो रेगुलर यूनिवर्सिटी है उनका अलग रहता है, बाकी ओपन डिस्टेंस लर्निंग की यूनिवर्सिटी है उनका अलग रहता है. तो उसमें लास्ट ईयर भी हम लोगों ने प्रथम आया था और इस बार भी हम लोग प्रथम आ गए. ठीक है, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कहाँ पे एडमिशन लिया, मैंने क्या किया है. ठीक है, सो नाउ वी हैव 67 रीजनल सेंटर्स थ्रू आउट द इंडिया. Okay, so these figures are says that what we have a Indira Gandhi National Open University Regional Center Nagpur. Like this, we have a 66 regional centers throughout the India. Okay, and 2667 LSCs. LSCs means study centers. LSCs and study center are both are same in India. Okay, and abroad, out of India also we have that is a 25 study centers we have in a 15 countries. Okay, like Nepal, Uganda, we have Singapore, we have study centers. Okay, over 3.4 million students are enrolled. Okay, so now 34 lakh students are enrolled, and every semester we are adding the 7 lakh students. Okay, and 40 above the 40 lakh students are already passed out from our university. How many? 40 lakh students are already passed out from our university successfully. Okay, so now next, what we are offering? We are offering the tremendous, what we call the right from the certificate to the postgraduate diploma and PhD also. Okay, so if you take the example certificate, okay, CFN is the certificate course. Like that, certificate course is only for the 6 months. Okay, certificate course is for the 6 months course. Okay, so this certificate course is a 6 months course we are providing. Okay, so diploma also we are providing. Okay, so graduation also we are providing. Okay, BCA, like that. PG diploma also we are providing. PG post graduation also we are providing. Also we are providing PhD. Okay, PhD we also we have a, but this is having at the headquarters New Delhi. Okay, so that's why I'm not telling. We have a B.Ed also, B.Ed nursing also we have. Okay, so
So IGNOU's, what is the IGNOU's mission? IGNOU's mission is what? These are the some mission. Don't, there is no age criteria. 18 above, anybody can take the admission in the our IGNOU. Okay. So there is gender no criteria, regional, nationality. There is no criteria anything. Okay. We are promoting the ODL. ODL means what? Open distance learning. Okay. This is our basic structure. You understand this structure first. Okay. So our headquarter at the Delhi. Okay. So now these three, basically we have a lot of divisions in New Delhi, but we have only concentrated on these three divisions. Okay. Whatever this is यूजफुल फॉर यू पीपल ओनली. आप लोगों को सिर्फ ये तीन जो है ये याद रखना है. ठीक है. फर्स्ट है स्कूल. स्कूल यानी कि वी हैव अ स्कूल यानी कि डिपार्टमेंट. जैसे कि यूनिवर्सिटीज में डिपार्टमेंट्स रहता है, उनको अपन यूनिवर्सिटी में बोलते हैं स्कूल्स. ऐसे 21 स्कूल्स है अपने यूनिवर्सिटी में. ठीक है. 21 schools like humanity school, school of humanities, school of sciences, school of agriculture, school of management. Okay. School of mass media communication. Okay. So like that we have a 21 schools. Okay. So suppose someone is taken to the MCA, that comes under the school of computational information and sciences. Okay. So under that school we have a regional centers. Okay. Like us. ओके. अपने जैसा, जैसे कि इग्नू नागपुर है, इग्नू रीजनल सेंटर नागपुर, वैसा रीजनल सेंटर रहते हैं और 67 अदर रीजनल सेंटर्स है. उनके अंडर आते हैं स्टडी सेंटर्स. ओके. जहां पे आप लोग एक्चुअली में आपका एडमिशन होता है स्टडी सेंटर में. ठीक है. स्टडी सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं? LSC, लर्नर सपोर्ट सेंटर. पहले स्टडी सेंटर बोलते थे, अभी LSC बोलते हैं. ठीक है. इसमें कोई अलग बात नहीं है, वही बात है. ठीक है. आप लोगों ने जहाँ पे एडमिशन लिए वहां पे क्या क्या कर सकते हैं आप लोग? आप वहां पे क्या कर सकते हैं? तो आपको एकेडमिक काउंसलिंग होती है वहां से. एकेडमिक काउंसलिंग यानी कि लेक्चर्स. ओके. यानी कि थ्योरी सेशंस आपको वहां से पढ़ाया जाता है. थ्योरी सेशन कैसे पढ़ाया जाता है? वो ऑनलाइन ही पढ़ाया जाता है. और जो एकेडमिक काउंसलिंग बोलते हैं वो एक्चुअली अपना जो फेस टू फेस रहता है यूनिवर्सिटी में, वैसे नहीं रहता है. आपको यहाँ पे एक्सपेक्टेड क्या है? आपको बुक्स मटेरियल जो भी है आपको मिल गए हैं, और मिलने के बाद आप वो पढ़ चुके हैं. पढ़ने के बाद वो आपको अंडरस्टैंड हो गया है. अंडरस्टैंड होने के बाद आपको कुछ डाउट्स है, तो डाउट आपको पूछने के लिए एकेडमिक काउंसलिंग होती है. उसे कहते हैं एकेडमिक काउंसलिंग. वहां पे लेक्चर्स नहीं बोलते, वहां पे एकेडमिक काउंसलिंग बोलते हैं. उसको अपन तो सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि वो है कि डाउट क्लियर सेशंस. ठीक है. सो ये कौन लेते हैं? ये यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर है, हमारे पास लेक्चरर्स है, यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर, ये अपने सब लोग एकेडमिक काउंसलर्स रहते हैं. इनको एकेडमिक काउंसलर्स बोलते हैं. ये लोग आपके सेशंस लेंगे. वो कैसे लेंगे? आपको कहाँ पे आना है? क्या कहीं पे आने के नहीं, ये ऑनलाइन होता है. तो कहाँ पे आपको इसका पता चलेगा? आपको शेड्यूल आ जाएगा. शेड्यूल कहाँ से आएगा? शेड्यूल कहाँ पे आएगा? ईमेल पे आएगा. शेड्यूल कौन भेजेगा? तो एकेडमिक काउंसिल यानी कि स्टडी सेंटर आपको शेड्यूल भेजेगा. उस शेड्यूल के अनुसार आप लोग काउंसलिंग यानी कि जो भी बात करना चाहते हैं या जो भी डाउट्स है वहां पे पूछ सकते हैं. ठीक है. आ गया समझ में? इफ देर इज अ प्रैक्टिकल्स इन द योर व्हाट वी कॉल इन योर कोर्स. ओके. आपके अगर प्रोग्राम में प्रैक्टिकल्स है तो प्रैक्टिकल को आपको फिजिकली वहां सेंटर पे आना पड़ेगा. ठीक है. इसमें नो डाउट. ओके. अगर आप फिजिकली सेंटर पे नहीं आते, अटेंड नहीं करते, तो आपको वो वहां पे कोई गुंजाइश नहीं है कि बाबा हम लोग मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा वो प्रॉब्लम है, मैं नहीं आ सकती, मैं दूसरे गांव में गई. ये कुछ नहीं चलता है यहाँ पे. अगर प्रैक्टिकल है तो बोल रहा हूँ. ठीक है. अगर प्रैक्टिकल नहीं है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं. तो प्रैक्टिकल सेशन के भी जो भी आपको उसके शेड्यूल है वो आपको आपके मेल पे आ जाएगा. मेल पे आने के बाद उस तारीख को आपको प्रैक्टिकल करने के लिए आना पड़ेगा फिजिकली. ठीक है. ये ऑनलाइन प्रैक्टिकल होता नहीं है. ठीक है. आगे समझ में? ठीक है. उसके बाद क्या करना है आपको? असाइनमेंट. हाँ. आपको जब आपका एडमिशन हो जाता है, एडमिशन तो ऑनलाइन आप लोग ले लिया है, आपको कंफर्मेशन भी मिल गया होगा अभी तक. ठीक है. जिनका नहीं मिला है वो भी मिल जाएगा कुछ दिन के बाद. अगर कुछ डिस्क्रिपेंसी है तो ही आपका यानी कि एडमिशन कंफर्मेशन नहीं आएगा. और डिस्क्रिपेंसी आप निकाल देते हैं, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट कम गिर गया या कि किसी का सरनेम में चेंज है, लड़कियों का रहता है. ठीक है. और सरनेम में चेंज है, अगर कुछ डिस्क्रिपेंसी आया आप तो मेल में चेक कीजिए, वैसा रिएक्ट कीजिए. ठीक है. तो एक्सपेक्टेड क्या है? कंफर्मेशन आने के बाद आपका जो एड्रेस दिया है हमें एडमिशन के टाइम पे,
वहां पे आपको आपका मटेरियल मिल जाएगा। ये मटेरियल कहाँ से आता है? ये मटेरियल आता है दिल्ली से। कहाँ से आता है? ये दिल्ली से आता है, ना रीजनल सेंटर से आता है ना स्टडी सेंटर से आता है, ठीक है, ये आता है दिल्ली से। सबको पता होना चाहिए कि आपका मटेरियल जो भी है, आपका मटेरियल आता है दिल्ली से, ना कि स्टडी सेंटर से आता है, ना कि रीजनल सेंटर से, ठीक है। तो आपको अगर मटेरियल नहीं आया, किसी को अगर मटेरियल नहीं आया तो किसको क्या करना है? आपको ईमेल, ये जो यहाँ पे दिया है, ये मेल को आपको करना है। यहाँ पे किसी को लिख लेना है, लिख सकते हैं, या स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, किसी को अगर मटेरियल यानी कि स्टडी मटेरियल, किसी को ऐसा नहीं कि कंफर्मेशन आज हो गया तो कल मटेरियल मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। कंफर्मेशन होने के बाद एक 15 दिन, सॉरी 1 महीना तो आपको वेट करना ही करना है। क्योंकि क्या होता है, दिल्ली अपने हर साल 7 लाख स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं। वो 7 लाख स्टूडेंट प्लस पिछले साल के यानी कि 3-4 साल के स्टूडेंट जो रहते हैं, वो मिला के 35 लाख स्टूडेंट्स है अपने पास। तो 35 लाख स्टूडेंट को आपको, हम लोगों को यानी कि दिल्ली से मटेरियल भेजना रहता है हर सेमेस्टर। तो दिल्ली में 25 से 30 बंडल्स हर हर रोज वहां से सेंड होता है। क्या होता है? सेंड होता है, ठीक है। सेंड होता है यानी कि वहां से सेंड किया जाता है, यानी कि भेजा जाता है, ठीक है। आ गया समझ में? तो इसलिए किसी को लगता है कि बाबा हमारा मटेरियल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, आ जाएगा, सबका मटेरियल आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सबका मटेरियल आ जाएगा, ठीक है, आज आज ना कल आ जाएगा ही, ठीक है। इसलिए कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं आया, 1 महीने के बाद भी अगर नहीं आया, तो आप लोगों को मेल करना है। मेल कहाँ पे करना है मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। ना रीजनल सेंटर को करना है, ना स्टडी सेंटर को करना है, ना स्टडी सेंटर को फोन भी करना है, कुछ नहीं करना है। किसको करना है फोन? फोन दिल्ली को करना है, ठीक है। हम लोग उसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उसका हमारे पास कुछ भी ये नहीं है, ठीक है। आगे समझ में? ओके, आगे बढ़ते हैं अब। हाँ, तो मैं भी जो भी शेयर कर रहा हूँ आप लोगों को दिख रहा है, ऐसा समझता हूँ, ठीक है। ओके, तो ये अगर आपको मटेरियल नहीं आया तो यहाँ पे आपको क्या करना है? तो ये जो मेल आईडी है, रजिस्ट्रार एमपीडीडी, एमपीडीडी का मीनिंग होता है मटेरियल प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन। ये बहुत बड़ा डिवीजन है, बहुत से लोग वहां पे काम करते हैं। खुद का अपना प्रिंटिंग प्रेस है वहां पे दिल्ली में, बहुत बड़ा, ठीक है। मैं तो बोलता हूँ हिंदुस्तान में ऐसा इतना बड़ा सिस्टम जो है डिस्ट्रीब्यूशन का, वो जो सरकारी सिस्टम है अपना राशन वाला, वो छोड़ दिया, तो हमारा ही सिस्टम सबसे बड़ा है, यानी कि बड़ा है हिंदुस्तान में, ठीक है। तो आगे समझ में सबको? हाँ, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी आपको मटेरियल मिल गया ऐसे समझते हैं। मटेरियल मिलने के बाद आपको पढ़ाई करना है, वो मटेरियल में आपको खुद को पढ़ाई करना है। खुद ने एडमिशन ले तो खुद खुद ही पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको असाइनमेंट लिखना है। असाइनमेंट कैसे लिखेंगे? असाइनमेंट यानी कि क्या एक्सपेक्टेड है, आपने पढ़ा है वो चैप्टर, पढ़ने के बाद हमारे क्वेश्चंस रहते हैं। ये क्वेश्चंस कहाँ पे देखना है आपको? ई ज्ञान कोश एक अपना पोर्टल है, ई ज्ञान कोश, ठीक है। ई ज्ञान कोश पोर्टल में जाना है, वहां पे आपके क्वेश्चंस जो भी है असाइनमेंट के डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको असाइनमेंट लिखना है, यानी कि उत्तर देना है वहां पे। तो असाइनमेंट कहाँ पे लिखना है? अपना प्लेन पेपर या रूलिंग पेपर, कोई भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं कि वो यहाँ से चाहिए वहां से चाहिए, ऐसा ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। कौन सा भी अपना A4 साइज वाला पेपर पे आप असाइनमेंट लिखना है। जैसे कि आप एग्जाम में आंसर लिखते हैं ना, वैसा असाइनमेंट लिखना है, अपने लैंग्वेज में लिखना है, देख के नहीं लिखना है। आ गया समझ में? ये कि उससे क्या होती है, आपको प्रैक्टिस हो जाती है, ठीक है। प्रैक्टिस होने से आपको जो एग्जाम है आपका, आने वाला एग्जाम है सेमेस्टर का, वो आपको इजी जाएगा। इसलिए असाइनमेंट का आपको खुद को लिखना है, और प्रैक्टिस भी हो जाए लिखने का। बहुत सारे लोगों को क्या होता है, 5-6 साल के बाद एडमिशन लेते हैं, गैप बढ़ता है, 5-6 साल में लिखना बंद हो जाता है, इसलिए उनको प्रैक्टिस नहीं रहती लिखने की, ठीक है। इसलिए आपको खुद को असाइनमेंट लिखना है। असाइनमेंट लिखने का कंप्लीट और असाइनमेंट हर कोर्स का अलग अलग होता है, और हर कोर्स का आपको, कोर्स यानी कि सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट का असाइनमेंट बनाना है। बनाने के बाद वो असाइनमेंट आपको स्टडी सेंटर में जाके सबमिट करना है। क्या करना है? सबमिट करना है। स्टडी से असाइनमेंट के ऊपर एक कवर पेज रहता है,
आप सिर्फ गूगल में डाल दीजिए असाइनमेंट का कवर पेज करके, इग्नो असाइनमेंट कवर पेज, इतना डाल दिए, वो आ जाएगा गूगल में। वो प्रिंट आउट मारना है और उसके बाद आपके डिटेल सब लिखना है, कौन सा कोर्स है, कौन सा ये है, वो एनरोलमेंट नंबर क्या है, वगैरह वगैरह सब लिख के हर असाइनमेंट को चिपकाना है। उसके बाद उसको अच्छी तरह से बांध देना है और स्टडी सेंटर में जाके सबमिट करके आपको रिसीट लेना है। वहां से क्या लेना है, असाइनमेंट जब भी आप सबमिट करोगे तो उसका आपके पास रिसिप्ट होना चाहिए, कौन से असाइनमेंट आपने, ये किस लिए चाहिए, कभी फ्यूचर में कुछ असाइनमेंट मिस हो गया, कुछ उसका असाइनमेंट के मार्क नहीं चढ़े, तो क्या होता है आपको ईमेल करने में वगैरह वो आपको इजी जाएगा, यानी कि आपको ट्रैक करने में वो इजी जाएगा। ठीक है, इसलिए वो असाइनमेंट जब सबमिट करते हैं कंपलसरी आपको वहां पे ये असाइनमेंट का रिसिप्ट मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो असाइनमेंट सबमिट नहीं करना है। अगर स्टडी सेंटर में आप गए, मान लीजिए कि अपना RTMNU कैंपस का गुरु नानक भवन का अपना सेंटर है, वो सेंटर कब खुलता है, शाम में 5 बजे खुलता है। आप गए 4 बजे, दिन में 4 बजे गए, वहां पे स्टडी सेंटर 5 बजे खुलता है। आप बोलेंगे मैं वो वॉचमैन के दे के जाता हूँ, वॉचमैन को किसी को देना नहीं है, प्रॉपरली वहां पे स्टडी सेंटर अंदर जाना है, जाने के बाद सबमिट करना है, सबमिट के बाद आप पर्ची लेना ही लेना है। ठीक है, वो साइन करके आपको पर्ची, और पर्ची वो आपके पास रखना है। ठीक है, सो अंडरस्टैंड दिस। ओके, सो प्रैक्टिकल्स मैं बता चुका हूँ आपको। प्रैक्टिकल्स किस किस को सबको नहीं रहता है प्रैक्टिकल्स, जिसको भी प्रैक्टिकल्स है वो उसका शेड्यूल आपको आ जाएगा और वो प्रैक्टिकल अटेंड करने आपका जहाँ पे भी स्टडी सेंटर है या कि यहाँ पे या ईमेल में लिखा हुआ रहता है कि कहाँ पे करना है, वो वहां पे जाके फिजिकली अटेंड करना ही करना है। नहीं किया तो क्या होता है, आप उसमें से आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे, यानी कि फेल हो जाएंगे आप, कंप्लीट नहीं होगा आपका कोर्स कंप्लीट। आप कुछ भी प्रॉब्लम रहने दो, प्रैक्टिकल हो गए। अगर ऐसा कुछ लोग बोलते हैं सर अभी मुझे जमता ही नहीं, मेरे को तो कोई तो बात कर रहा है, म्यूट कीजिए, राजेश म्यूट कर सगळ्यांना। हाँ तो प्रैक्टिकल सबको करना ही करना है। ठीक है, करने के बाद अगर किसी को प्रोजेक्ट रहता है, प्रोजेक्ट भी बहुत सारे लोगों का प्रोजेक्ट भी रहता है, प्रोजेक्ट का आप और सबसे पहले और एक मैं बात बताना चाहता हूँ, सब प्रोग्राम का प्रोग्राम गाइड एक रहता है। ठीक है, ये सब लोग अच्छी तरह से सुन लेना है, क्या रहता है, प्रोग्राम गाइड। ये प्रोग्राम गाइड जो है सब लोग अपने अपने प्रोग्राम का लेटेस्ट प्रोग्राम गाइड, यानी प्रोग्राम गाइड यानी कि क्या होता है, ब्रोशर होता है आपके एडमिशन का। मान लीजिए कि एमसीए में एडमिशन लिया है, एमसीए का एमसीए न्यू में लिया है। एमसीए में 2 प्रकार है, एमसीए ओल्ड भी एक है, अभी एमसीए न्यू भी है। एमसीए न्यू में आपने एडमिशन लिया है, एमसीए न्यू का प्रोग्राम गाइड यानी कि वो एमसीए का हर बात यानी कि सब उसमें गाइडलाइन, यानी कि आपका एडमिशन के से लेकर सब्जेक्ट के लेकर असाइनमेंट से लेकर आपको सब वहां पे इंफॉर्मेशन दी जाती है। ठीक है, इंफॉर्मेशन दी जाती है, इसलिए सब लोग जो आपका प्रोग्राम गाइड है डाउनलोड करके रखना है सब लोग। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बताने वाला था लेकिन मैं भूल गया, इसलिए मैं अभी बता रहा हूँ प्रोग्राम गाइड। ठीक है, प्रोग्राम गाइड के साथ साथ एक रहता है जिनके कोर्स में प्रोजेक्ट है, उसमें प्रोजेक्ट गाइड रहता है। क्या क्या रहता है, प्रोजेक्ट गाइड। ठीक है, प्रोजेक्ट गाइड ये भी डाउनलोड करके आपको उस प्रोजेक्ट में कैसा करना है, क्या करना है, कहाँ पे सबमिट करना है, ये सब लिखा हुआ रहता है। ठीक है, वो इससे ही आपको करना है, डेडलाइंस वगैरह सब वहां पे। सर मुझे मालूम ही नहीं था, मुझे ये हुआ ही नहीं, मैं ऐसा था, मैं भूल गई, ऐसा नहीं चलेगा। आपको सबको प्रोग्राम गाइड में जो दिया है वहां पे, अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है वहां पे ईमेल भी दिया हुआ है। जो कोर्स कोऑर्डिनेटर रहता है, कोर्स कोऑर्डिनेटर की दिल्ली में रहता है, सपोज एमसीए का एक प्रोग्राम है, उसमें कुछ कोर्सेस है, उनका कुछ डाउट है तो आप उनको डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं और आपको वो मेल आपको यानी कि रिप्लाई भी करते हैं वो लोग। ठीक है, इसलिए प्रोग्राम गाइड ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अभी आपने असाइनमेंट सबमिट कर दिया, प्रैक्टिकल भी हो गया। ठीक है, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट भी हो गया। अब आपको क्या करना है, या आपका आगे का पड़ाव है, ये इसको कहते हैं एसीडी यानी कि स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीजन से एग्जामिनेशन के रिलेटेड नोटिफिकेशन आती है। तो आपने एडमिशन ले लिया है, यानी कि एडमिशन ले लिया है यानी तो एग्जाम देना ही है, ऐसा नहीं है।
मान लीजिए कि आपने एमसीए बीसीए में आपने एडमिशन लिया, ठीक है, ये सेमेस्टर में आपको अगर देना है एग्जाम दे सकते हैं, नहीं देना है तो अगले सेमेस्टर में दे सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, मैं तो सबको कहता हूँ एडमिशन लिए के बराबर जो भी सेमेस्टर आपका आगे आने वाला है एग्जाम का, वो सेमेस्टर में हर सेमेस्टर में एग्जाम देना है और सब में पास होना है, ठीक है, सब में पास होना है, ठीक है। पढ़ाई करना है, असाइनमेंट लिखना है, प्रैक्टिकल करना है और आगे बढ़ना है। जो भी आपका एमसीए है 2 साल का तो 2 साल में कंप्लीट करना है, बीसीए 3 साल का है 3 साल में ही कंप्लीट करना है, ठीक है। आपका एडमिशन हो गया, अभी आपको एग्जाम फॉर्म भरना है। अभी कुछ लोग अभी 20 तारीख तक एग्जाम फॉर्म का लास्ट डेट है, ठीक है। सब लोग वहां पे आप जाके एग्जाम फॉर्म भरना है, जाके बोले तो यानी कि कहाँ जाने की जरूरत नहीं, वो ऑनलाइन में ही है, ठीक है। एग्जाम फॉर्म आप ऑनलाइन ही भरना है, हर कोर्स का 200 रुपये लगेगा। कब तारीख तक, मान लीजिए कि 5 कोर्सेस है आपके, 5 कोर्स के 200 करके ऐसा 1000 रुपये आपको भरना है। कब तक है वो, 20 तारीख तक। 20 तारीख चले गई तो 1000 प्लस 1100 रुपये ऐसा फाइन लगेगा आप लोगों को, ठीक है। फाइन लगा के आपको वो आएगा। और एक बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ, एग्जाम फॉर्म आप जब फिल करते हैं तो एग्जामिनेशन आप ऑल ओवर द इंडिया कहीं पे भी एग्जाम दे सकते हैं। मान लीजिए कि आपने यहाँ पे एडमिशन ले लिया, गुरु नानक भवन में एडमिशन लिया है, स्टडी सेंटर वहां पे, ऐसा कुछ नहीं कि वहां पे भी वहां पे एग्जाम देना है, ऐसा कुछ नहीं है। नागपुर में एग्जाम देना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप कहाँ पे भी एग्जाम, दिल्ली में भी एग्जाम दे सकते हैं, मुंबई में भी दे सकते हैं, नांदेड़ में दे सकते हैं, अमरावती में भी दे सकते हैं, कहीं पे भी जहाँ पे अपना एग्जाम सेंटर है। अपने 8 एग्जाम सेंटर है, 8 एग्जाम सेंटर वो छोड़ के बाकी हिंदुस्तान में 3-4 हजार एग्जाम सेंटर होंगे, वहां पे कहीं पे भी दे सकते हैं। आसाम में भी दे सकते हैं, हिमाचल में भी दे सकते हैं। क्या करना है वो आपको, एग्जाम फॉर्म जब फिलअप करते हैं तब आपको सेंटर चूज करना है, ठीक है। मुझे बाबा आज मान लीजिए कि आप आज यहाँ पे है, अगर 1 महीने के बाद यानी 1 दिसंबर से अपना एग्जामिनेशन शुरू हो जाता है, आप शेड्यूल देख लेना है सबको, वेबसाइट पे शेड्यूल देख लेने का आपके पेपर कब कब आते हैं। वो पेपर को आप सब मान लीजिए कि वो पेपर को आप लोग हैदराबाद में रहेंगे तो हैदराबाद सेंटर चुन लीजिए। लेकिन एक पेपर को एक सेंटर, दूसरे पेपर को दूसरा सेंटर, ऐसा नहीं चलेगा। सब सब कोर्सेज को एक ही सेंटर सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आपको हैदराबाद में देना है, उस टाइम पे आप हैदराबाद रहेंगे 1 महीना भर, तो आप हैदराबाद सेलेक्ट कीजिए और आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। सब लोग फॉर्म भरना है, ठीक है, और जल्दी भरना है, विदाउट लेट फी भरना है, ठीक है। 1100 का लेट फाइन, वो 10 दिन रहता है, उसके बाद वो भी क्लोज हो जाता है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता है कि एग्जाम फॉर्म कब आए कब निकल गया। इसलिए मैं कहता हूँ कि सब लोग सोशल मीडिया सब्सक्राइब कर लो, यानी कि हम लोग नोटिफिकेशन भेजते रहेंगे, ठीक है। ओके, एग्जाम फॉर्म फिल कर लेना है, का है आप लोगों को, अभी जो चल रहा है, अभी आप सब लोग एग्जाम दे सकते हैं। अभी अगला जो 1 दिसंबर से एग्जाम चालू होने वाला है, और 1 दिसंबर से लगभग 14 जनवरी तक अपना एग्जामिनेशन चालू रहने वाला है, ठीक है। आप बोलेंगे सर मेरा शादी है, आप बोलेंगे मेरा मेरा भाई का ये है, मेरे ये हो गया है, मैं हॉस्पिटल में हूँ, मेरा आगे पेपर लीजिए। यहाँ पे इग्नू में एक बार जो शेड्यूल बनता है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि आपको चेंज करने गया तो और दूसरे लोग रहते हैं, उनका बैठना है पे। अपना शेड्यूल देख के सब लोग छुट्टियां, जैसे भी बहुत सारे लोग 60-70% अपने इग्नू में काम करने वाले लोग हैं। यहाँ पे कहीं ऑफिस में जॉब करते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट में, कोई बैंक में, वो शेड्यूल देख के वो छुट्टी मैनेज करके, छुट्टी डाल के वो एग्जाम के लिए प्रिपेयर होते हैं और एग्जाम के लिए जाते हैं। इसलिए शेड्यूल कभी भी चेंज नहीं होता है। हालांकि कब चेंज होता है, बहुत रेयर, बहुत नेचुरल कैलामिटीज, नेचुरल यानी कि भूकंप आ गया, ऐसा कुछ बहुत रेयर, और उस दिन एक आधा नेशनल इवेंट है, या उस दिन एक यूपीएससी की एग्जाम आ गई, तो उस केस में वो सिर्फ वो पेपर आगे बढ़ जाता है, ठीक है। बाकी कुछ चेंज नहीं होता है, ठीक है। आ गया समझ में? ओके। तो और एक बात मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, फिर से एक बोल रहा हूँ, आप एग्जामिनेशन कहीं पे भी दे सकते हैं, सिर्फ आपको फॉर्म भरते वक्त वो सेंटर चूज करना है। अभी लास्ट एग्जाम में एक क्या हुआ, मैं जैसे एग्जाम सेंटर पे गया तो 4 बच्चे बाहर आ रहे थे। मैं उनको पूछा क्या है बाबा, कैसा गया पेपर? अच्छा गया सर बोले, अभी लास्ट पेपर था आज। बोले अच्छा गया। बोले बाहर कहाँ से आप लोग? वो बोले गढ़चिरौली से सर। फिर गढ़चिरौली तो यहाँ पे नागपुर में क्या कर रहे हैं, नौकरी करते हैं? नहीं सर मैं हम गढ़चिरौली में ही रहते हैं। तो गढ़चिरौली में, तो गढ़चिरौली के एग्जाम क्यों नहीं देते सेंटर पे? गढ़चिरौली में सेंटर कहाँ है सर? बोले तो उनको मालूम ही नहीं था गढ़चिरौली में अपना एग्जाम सेंटर है। तो गढ़चिरौली में भी अपना एग्जाम सेंटर है। वो लोग
उनको पता नहीं था, यानी कि वो इंडक्शन मीटिंग अटेंड नहीं किए होंगे, उनको पता नहीं था, पढ़ा नहीं होगा, तो वो लोग क्या करते थे, यहाँ पे नागपुर में लॉज में रह के हॉस्टल का खा के या होटल में खा के एग्जाम देने नागपुर में रुकते थे। ये कितना खर्चा हो गया, खुद के पास एग्जाम सेंटर रख के यहाँ पे नागपुर में एग्जाम दिया उन्होंने। तो ऐसा मत करो, सब लोग चेक कर लो अपने एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ पे, मैं एक बार बता देता हूँ, अपने अपने रीजनल में, ठीक है, बाकी तो हिंदुस्तान में सब तरफ है, ठीक है, सिर्फ चेक कर लेने का है आपको, और मेजर सिटीज में, सब सिटीज में अपने एग्जाम सेंटर है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं अभी। उसके बाद सर प्रोग्राम गाइड एंड प्रोजेक्ट गाइड कहाँ से डाउनलोड करना है? सुनो सुनो सुनो, मैं जब तक किसी को बोलूंगा नहीं आपकी कुछ प्रॉब्लम है, तो तब को कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। जब मैं बोलूंगा आपकी कुछ प्रॉब्लम है तभी बोलना है, ठीक है। ऐसा पूछते जाओगे कि मेरा भी लिंक निकल जाएगा, और आप एक पूछेंगे तो 10 और लोग पूछेंगे, ठीक है। ओके, सो एग्जामिनेशन हो गया, एग्जाम आपने अच्छी तरह से लिखा है, एग्जाम के बाद आ गया डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। रिजल्ट का भी ऐसा ही है, 40 से 50 दिन में रिजल्ट लगता है। अगर नहीं लगता है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं, कुछ रिजल्ट्स आगे पीछे भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि एमसीए का आपका 5 सब्जेक्ट दिया है आपने, दो का लगा, 3 का नहीं लगा, ऐसा भी हो सकता है, 1 का लगा, 4 का नहीं लगा, ऐसा भी हो सकता है, आगे पीछे रिजल्ट्स लग सकते हैं। ये ऐसे कि यूनिवर्सिटी में, रेगुलर यूनिवर्सिटी में क्या आता है, रिजल्ट यानी कि सबके रिजल्ट, सबके मार्क्स एक ही बार दिख जाते हैं, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे कैसा है, हर कोर्सेज का, हर सब्जेक्ट का अलग अलग रिजल्ट डिक्लेयर होते रहता है, इसलिए आपको रिजल्ट के वेबसाइट पे आप इसका चेक कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत ही दिन हो गया, अगर रिजल्ट नहीं लगा, 3 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, तो तब आप लोग हमें मेल लिखना है, सर ऐसा ऐसा है। हमें भी नहीं लिखना है एक्चुअली, दिल्ली को ही लिखना है, ठीक है। ये ऐसा नौबत नहीं आएगी, अगर नहीं होता है तो हमको मेल लिखना है कि वो ऐसा ऐसा रिजल्ट है, मैं एग्जामिनेशन दिया हूँ, तो मेरा रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं किया, ठीक है। उसका कुछ रीजन हो सकता है, रीजन की वजह से डिक्लेयर नहीं होगा, ठीक है। इसलिए रिजल्ट आप वेट करना है, रिजल्ट नहीं है, आप एग्जाम आज दे दिए और 10-20 दिन के बाद आप मेल कर रहे, सर माय रोल नंबर इज दिस, माय नेम इज दिस, आई हैव गिवन एग्जामिनेशन, माय रिजल्ट टिल नॉट डिक्लेयर। दिस इज नॉट द वे। व्हाट इज द वे? यू हैव टू वेट फॉर द 50 more than 50 days, okay? After 50 days or after 60 days you can check your, डोंट पैनिक, ओके। आपका रिजल्ट आएगा, कहीं पे भी नहीं जाता है। हिंदुस्तान में सबसे बड़ा एग्जामिनेशन लेने वाला इग्नू ही है, एक बार बता चुका। और क्या है, इग्नू में रीजनल सेंटर के जो स्टाफ अगर छोड़ दिए, तो बाकी के जो एग्जाम सेंटर पे काम करते हैं या वहां पे एग्जाम लेते हैं, वो अपना फुल टाइम स्टाफ नहीं है, वो रेमुनरेशन पे काम करते हैं, हम लोग उनको पैसे देते हैं। यूनिवर्सिटी में काम करने वाले रेगुलर एम्प्लॉय रहते हैं, और उनको आवरली बेसिस पे हम लोग पैसे देते हैं, इसलिए वो एग्जाम सेंटर वहां पे चलता है, ठीक है। तो आपने वहां पे भी एग्जाम सेंटर पे आप जब जाओगे तो एडमिट कार्ड लेके जाना है। क्या लेके जाना है? एडमिट कार्ड। तो एडमिट कार्ड कहाँ पे मिलता है? एडमिट कार्ड आप एग्जाम फॉर्म भरने के बाद एक डेट रहती है, एक डेट के बाद आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा आपके, कहाँ से? आपके लॉगिन में से, स्टूडेंट पोर्टल में से आपको एग्जाम का एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। डाउनलोड करके उसको प्रिंट करके अपने साथ लेके जाना है। उसके साथ और एक चीज लेके जाना है, क्या है? जो भी फोटो आइडेंटिटी, एक्स्ट्रा फोटो आइडेंटिटी, जैसे कि आधार कार्ड, ओके, आपका पैन कार्ड, आपका पासपोर्ट, ठीक है। पासपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहती है, ये नहीं लाए तो चलेगा। ऐसे फोटो आइडेंटिटी जो भी है आपको एक एक्स्ट्रा लेके जाना है, क्योंकि क्या होता है आपको, आपने जो डाउनलोड किया है वो फोटो कॉपी है, वो कलर में नहीं रहता है, ठीक है। और वो डायरेक्टली आप डाउनलोड करते हैं, उसमें कभी कभी क्या होता है, फोटो क्लियर नहीं दिखता है। इसलिए आप लोग आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, जो भी फोटो आईडी है, ये 2-4 जो भी है, उसमें आपका जो एडमिट कार्ड है ना, उसके ऊपर पूरा डिटेल में लिखा हुआ रहता है क्या क्या करना है, क्या क्या करना है। और 15 से 20 मिनट पहले पहुंचना है वहां पे एग्जाम सेंटर पे। और एग्जाम सेंटर में किसी को भी यानी कि कुछ, यानी कि गाली गलौज रहने दो, कुछ रहने दो, नहीं करना है, क्योंकि वो एम्प्लॉयज जो है अपने इग्नू के एम्प्लॉयज नहीं है। आप अगर ज्यादा ये करेंगे तो एग्जाम, वो बोलते कि एग्जाम सेंटर बंद करो, हमें कुछ लेना देना नहीं है, आप कहीं पे भी जाओ, ठीक है। ऐसा कुछ करना नहीं है, और नहीं करते अपने बच्चे वैसा नहीं करते, लेकिन 1-2 इंसिडेंट ऐसे हो गए, इसलिए मैं सबको बता रहा हूँ, ठीक है। एडमिट कार्ड आपको साथ लेके जाना है, उसके साथ एक फोटो आइडेंटिटी भी लेके जाना है फिजिकली। मोबाइल पे नहीं चलेगा, मोबाइल पे एडमिट कार्ड भी नहीं चलेगा, मोबाइल पे फोटो आईडी भी नहीं चलेगी।
मोबाइल अंदर अलाउड ही नहीं है, मोबाइल लाना ही नहीं है, मैं तो बोल रहा हूँ, ठीक है। ओके, मोबाइल जिसका भी आया लाए होंगे, एक तो बाहर बैग में रखना है, किधर भी रखना है रख सकते हैं। अगर मोबाइल अंदर दिख गया, कॉपी केस तो होता ही होता है, और डिजिटल का वो एक केस है, वो भी बन जाता है आपके ऊपर, ठीक है। इसलिए मोबाइल अंदर लाना मना है। और बोलेंगे सर वो मैं आई कार्ड भूल गई प्रिंट करना मेरे मोबाइल में, नहीं चलेगा, आपको एग्जाम देने नहीं देंगे। फुल ऑर्डर्स उनको, उन लोगों को दिया गया है, वहां पे सेंटर सुप्रीडेंट को फुल ऑर्डर दिया हुआ रहता है। जिसके पास भी एडमिट कार्ड नहीं है वो लोगों को अंदर लेना नहीं है। आपका कोई राइट नहीं बनता है जबकि आपके पास एडमिट कार्ड नहीं हो तो, ठीक है। आ गया समझ में सबको? हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी। ओके, हाँ, की फीचर्स ऑफ इग्नो, नेशनल ज्यूरिडिक्शन वगैरह वगैरह ये सब लोगों को पता है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन, सेल्फ इंस्ट्रक्शन मटेरियल है अपना, जो भी प्रिंटेड मटेरियल है अपना। अगर किसी को मटेरियल नहीं आया और एग्जाम पास में आ रहे तो क्या करना है आप लोग, ई ज्ञान कोश करके अपना एक पोर्टल है। आप गूगल पे डालेंगे ई ज्ञान कोश तो आपको, राजेश 2 मिनिट ई ज्ञान कोश बद्दल सांग बरं। ई ज्ञान, हाँ जी सर, सांग। ई ज्ञान कोश हमारा ई लाइब्रेरी भी बोला जा सकता है, जहाँ से इग्नू के जितने भी प्रोग्राम हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम सर्टिफिकेट टू ते एकदा मास्टर। दाखवूनच टाकून दे त्यांना, हाँ हाँ मी शेअरिंग बंद केलंय, तू हाँ। करून शेअर। ठीक है, दिसत आहे सर? हाँ राइट, दिसते। हाँ, तो देखिए यहाँ पे ये eGyankosh.ac.in ये वेबसाइट है इग्नू का ही, जहाँ से आप अपना किसी भी प्रोग्राम का, किसी भी सब्जेक्ट का ई बुक्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मुझे मान लीजिए अगर MBA के ई मटेरियल डाउनलोड करना है, तो आप एक तो अपना जो कोर्स कोड है MMPC 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली सर्च ऑप्शन में MBA टाइप करके सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद यहाँ पे MBA न्यू करके वहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पे सेमेस्टर 1 2 3 4 ऑप्शन आ जाएगा। जैसे आपका सेमेस्टर 1 है, सेमेस्टर 1 पे क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पे आपके सब्जेक्ट दिखेंगे MMPC 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ से आप अपना ई मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। तो जब तक प्रिंटेड बुक्स आपके एड्रेस पे नहीं आता है, तब तक आप ई मटेरियल डाउनलोड करके अपना धीरे धीरे असाइनमेंट भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अपना सब्जेक्ट कोड से आप सर्च कीजिए। जैसे MBA का MMPC सब्जेक्ट है, MA साइकोलॉजी का MPC सब्जेक्ट है, तो आप अपना जो सब्जेक्ट कोड है, सब्जेक्ट कोड आपके एडमिशन फॉर्म में लिखा होगा, या फिर आपको जो कंफर्मेशन मेल आया है जिसमें आपका एनरोलमेंट नंबर वगैरह दिया हुआ है, उसमें आपको आपके सब्जेक्ट पता चलेंगे। तो जिनको भी अभी तक प्रिंटेड बुक्स नहीं मिला है, या फिर जिन्होंने ई मटेरियल का ऑप्शन ऑप्ट किया है एडमिशन फॉर्म फिलअप करते वक्त, वो अपना ई बुक्स इस पोर्टल से डाउनलोड करके वो यूज कर सकते हैं, ठीक है सर। अजून ते पण सांगू टाका, आपला असाइनमेंट कसं हे ठीक है करायचं। ठीक है, मैं जनरल इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। सभी ने स्टूडेंट पोर्टल पे जाके अपना एक पासवर्ड क्रिएट किया है क्या? हे सांगू टाक। देखिए, स्टूडेंट पोर्टल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी पोर्टल थ्रू आपको आपका एग्जाम फॉर्म सबमिट करना है। ये स्टूडेंट पोर्टल है जहाँ पे सभी स्टूडेंट ने पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। आपने जब एडमिशन फॉर्म फिलअप किया था, तब आपने एक यूज़र आईडी पासवर्ड क्रिएट किया होगा। वो यूज़र आईडी पासवर्ड इधर काम नहीं करेगा, वो सिर्फ एडमिशन के लिए ही वैलिड होता है। एक बार आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है, कंफर्म होने के बाद आपको ये स्टूडेंट पोर्टल पे जाके न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपको वो आपका डिटेल पूछेगा, जैसे आपका प्रोग्राम BCA है, MBA है या MCA है, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फिर नेम एज ऑन ID कार्ड, आपके ID कार्ड पे जो भी आपका नाम है, जैसे मेरा नाम है राजेश अशोक वासनिक, अगर कैपिटल है तो कैपिटल ही आपको एंटर करना है, स्मॉल लेटर है तो स्मॉल लेटर, जैसा है वैसे ही आपको यहाँ पे एंटर करना है।
फिर आपका जो एनरोलमेंट नंबर है वो एंटर करने के बाद कैप्चा कोड डाल के सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको एक ओटीपी आएगा, मेल या एसएमएस। वो ओटीपी एंटर करने के बाद आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है और वो पासवर्ड आपको हमेशा संभाल के रखना है। ठीक है, इसी पोर्टल थ्रू आपको आपका एग्जाम फॉर्म सबमिट करना है। दूसरा है एग्जाम का हॉल टिकट भी इसी पोर्टल पे आएगा। और तीसरा है नेक्स्ट सेमेस्टर का या नेक्स्ट ईयर का जब आप एडमिशन करोगे वो भी प्रोसेस आपको इसी पोर्टल थ्रू करना है। तो इसी वजह से सभी स्टूडेंट ने अपना जो स्टूडेंट पोर्टल का पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। इनकेस अगर किसी स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, पासवर्ड जनरेट नहीं हो पा रहा है, तो उनको तुरंत यहाँ रीजनल सेंटर में कांटेक्ट करना है। ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट पोर्टल का। दूसरा है असाइनमेंट के लिए। असाइनमेंट मेरे हिसाब से अभी तक सभी स्टूडेंट ने धीरे धीरे शुरू कर दिए होंगे बनाना, बट इनकेस अगर जिन्होंने अभी तक शुरुआत नहीं की असाइनमेंट लिखने के लिए, उनको मैं थोड़ा जानकारी देना चाहूँगा। सबसे पहले तो ignou.ac.in वेबसाइट पे विजिट करना है। विजिट करते ही यहाँ पे स्टूडेंट सर्विसेज एक ऑप्शन है, वहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड पे आपको क्लिक करना है। डाउनलोड में फिर आपको ऑप्शन मिलेगा, जैसे आपका अभी एडमिशन हुआ है जुलाई 25 सेशन के लिए, तो ये न्यू करंट असाइनमेंट पोर्टल है, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपके इग्नू में जितने भी प्रोग्राम है उसके सभी के आपको असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर यहाँ पे मिल जाएंगे। अब ये ढूंढना कैसे वो मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे आपका MBA प्रोग्राम है, तो MBA में आपके सब्जेक्ट है फर्स्ट सेमेस्टर में MMPC 1 से लेकर MMPC 7 तक। तो आप सिंपली MBA टाइप करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे MBA सर्च ऑप्शन में टाइप करने के बाद यहाँ पे नीचे में आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। इसमें फिर आपको ढूंढना है आपके सब्जेक्ट कौन सा है। अगर प्रोग्राम कोड से वो नहीं मिल रहा है तो आप अपना सब्जेक्ट कोड डालिए, जैसे MMPC 1 2 3 4 ये सभी नीचे आ गए MMPC 1। और हर एक असाइनमेंट का एक वैलिडिटी होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है MMPC 1 फॉर जुलाई 25 एंड जनवरी 26 सेशन। इसका मतलब ये है कि जिन स्टूडेंट का एडमिशन जुलाई 25 में हुआ है उनको उनके लिए ये वैलिड है, और जिनका एडमिशन जनवरी 26 बैच में होगा उनके लिए भी ये सेम असाइनमेंट वैलिड है। अब ये असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे लास्ट डेट भी लिखा हुआ होता है। यहाँ पे देखिए जुलाई 25 के लिए 31 अक्टूबर तक आपको ये असाइनमेंट लिखकर आपका जो स्टडी सेंटर है वहाँ पे आपको हार्ड कॉपी सबमिट करना है। ठीक है, ये हो गया असाइनमेंट का। इसी तरीके से आप आपका जो भी प्रोग्राम होगा उस प्रोग्राम में आपने जो सब्जेक्ट लिए है उसके असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये अभी आपको 31 अक्टूबर तक आपके स्टडी सेंटर में लिखकर सबमिट करना है। ठीक है, ये हो गया असाइनमेंट का। दूसरा देखते हैं। अब इग्नू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी साइट पे अवेलेबल है। तो आइडिया चाहिए किस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, वो स्टूडेंट यहाँ से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्रॉम दिसंबर 24 है, दिसंबर 24 के बाद के सभी क्वेश्चन पेपर यहाँ पे मिलेंगे और उसके पहले के आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो जैसे दिसंबर 24 के मुझे चाहिए, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद दिसंबर 24 का भी ऑप्शन है, जून 25 का है। अगर जून 25 पे क्लिक करते हैं तो जून 25 के क्वेश्चन पेपर आ जाएंगे। अब इसमें आपका जो सब्जेक्ट कोड है, जैसे MMPC 1 है MBA का, MMPC 1 ये आपको सर्च करना है यहाँ पे, और सर्च ऑप्शन में आपको MMPC के सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे, यहाँ से आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और कुछ एक मिनट। हाँ, दूसरा है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन स्टेटस, इग्नू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन स्टेटस। ये एक इम्पोर्टेंट लिंक है जहां से आप अपना असाइनमेंट का मार्क, रिजल्ट का मार्क, वो सभी आपको
आप अपना यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे कि एक मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे आपको आपका एनरोलमेंट नंबर एंटर करना है, फिर आपका प्रोग्राम कोड। जैसे मेरा है पीजीडीटी, तो मैंने मेरा पीजीडीटी प्रोग्राम सिलेक्ट किया, मेरा एनरोलमेंट नंबर एंटर किया, फिर वो कोड एंटर करके सबमिट किया। सबमिट करने के बाद ये है आपका स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन स्टेटस। यहाँ पे आपको अपना डिटेल आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, इनकेस अगर आपके नाम में कुछ करेक्शन है, स्पेलिंग मिस्टेक है, तो तुरंत आपको यहाँ पे इन्फॉर्म करना है। ठीक है, दूसरा है यहाँ पे आपका एडमिशन ईयर दिया हुआ है। जैसे मेरा एडमिशन जनवरी 2020 में हुआ था, और मेरा जो एडमिशन वैलिडिटी था वो दिसंबर 23 तक मुझे एनी हाउ ये प्रोग्राम कंप्लीट करना था। तो आप भी अपना रजिस्ट्रेशन स्टेटस चेक करके आपका वैलिडिटी कब तक है वो सभी डिटेल आप चेक कर सकते हैं। इसमें मेरा फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस वगैरह ये सभी इंफॉर्मेशन आएगी। बाद में फिर ये मेरे है सब्जेक्ट, जो मेरा जो प्रोग्राम था वो 1 साल का ही था, इस वजह से यहाँ पे 1 ईयर ऑब्लिक सेमिस्टर ही दिया है। ठीक है, अब बीसीए, एमसीए, एमबीए या और कुछ जो मास्टर डिग्री या बैचलर डिग्री प्रोग्राम होगा, वहां पे आपको इसके नीचे में भी जब आप एडमिशन लेते हैं, जैसे ये मेरा फर्स्ट ईयर है, तो आप नेक्स्ट ईयर जब एडमिशन लोगे तो यहाँ पे सेकंड सेमेस्टर ऑब्लिक ईयर करके यहाँ पे आएगा। फिर थर्ड ईयर और थर्ड सेमेस्टर नीचे में दिखेगा। तो आपके यहाँ पे सब्जेक्ट दिए हुए, उसके बाद फिर आपको यहाँ पे ग्रेड कार्ड में आपके जो असाइनमेंट के मार्क्स है, वो भी असाइनमेंट के मार्क्स जनरली फर्स्ट कॉलम में दिए हुए होते। प्रैक्टिकल या लैब या प्रोजेक्ट होता है वो सेकंड थर्ड कॉलम में दिया होगा, और लास्ट कॉलम में जो है वो आपके थियरी एग्जाम के मार्क्स दिए हुए होते हैं। तो और लास्ट में आपका वो सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ है वो सभी डिटेल यहाँ पे रिमार्क में दिया हुआ होता है। तो ये आपको चेक करते रहना है। कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट के रहते हैं मान लीजिए 7 सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर में, एग्जाम देते हैं सातों का, बट किसी सब्जेक्ट में अगर वो फेल हो जाते तो यहाँ पे नॉट कंप्लीटेड लिख के आता है। अब उसमें आपको ये चेक करना है आप असाइनमेंट में फेल है इधर, या फिर थियरी एग्जाम में फेल है। जैसे एमबीए प्रोग्राम है तो एमबीए में ग्रेडिंग सिस्टम होता है, वहां पे आपको मिनिमम सी ग्रेड तो लाना है, असाइनमेंट में भी और एग्जाम में भी। दोनों में अगर आपको सी ग्रेड मिल जाता है तो ही वो आपका इधर कंप्लीटेड दिखेगा। ग्रेड सिस्टम कुछ ही प्रोग्राम में, मैक्सिमम प्रोग्राम में तो मार्क्स ही होते हैं। जनरली मास्टर डिग्री प्रोग्राम में पासिंग होता है 40 मार्क्स। ठीक है, और बैचलर डिग्री में लगभग 35 के आसपास, वो प्रोग्राम के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये आपको चेक करते आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपका कौन सा सब्जेक्ट कंप्लीट है, आपका असाइनमेंट बैक है या फिर एग्जाम आपका बैक आया, वो आपको पता होना चाहिए। इनकेस अगर आपको असाइनमेंट में मेरा जैसे अगर एमबीए अगर प्रोग्राम है, एमबीए में मुझे अगर यहाँ पे सी ग्रेड नहीं मिला, मुझे डी या ई मिल गया, तो मुझे फिर से उस सब्जेक्ट का असाइनमेंट लिखकर सबमिट करना पड़ेगा। इनकेस अगर मैं एग्जाम में फेल हो जाता हूँ, एग्जाम में मुझे डी या ई मिल जाता है, तो मुझे फिर से उस सब्जेक्ट का एग्जाम देना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक इम्पोर्टेंट है, आपको ये चेक करते आना चाहिए। और इनकेस जो कुछ भी आपको डाउट आता है, नहीं समझ में आ रहा, आप रीजनल सेंटर कांटेक्ट कीजिए। ठीक है, अभी आप चाहे तो अपने जो भी क्वेश्चन है वो 1 बाय 1 आप पूछ सकते हैं। नाही नाही, एक मिनिट, एक हाँ, पुन्हा हाँ, हॅलो, एक मिनिट, एक पीपीटी कंप्लीट करू दे मला. हॅलो राजेश, हो हो, पीपीटी यस कंप्लीट सर, करू दे मला. यस सर। बघा मग. हाँ, हे काय सर, जगदीश सरांना द्यायचं. हो.
Sir, your mic is off. Who is presenting this presentation? Please also. Hello, good afternoon, sir. I have one queries. Can I ask? Go ahead. If anyone solve the query, can you. Host is not available. अभी दिख रहा है क्या प्रेजेंटेशन? Yes, sir. हाँ ठीक है, Hello. सॉरी Yes, Hello, sir. sir. क्या? Hello, I'm audible. हाँ यस यस, ये मेरा फिनिश करने दो, ओके। हाँ तो प्रिपेयर, हाँ जो असाइनमेंट बनाना है, बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन रहता है कि असाइनमेंट कैसे बनाना है। राजेश ने भी बताया है, फिर से मैं एक बार बताता हूँ आपको। हाथ से लिखना है, खुद के हाथ से लिखना है, पढ़ के, ठीक है, और मन से लिखना है, ठीक है, ओके। और कहाँ पे सबमिट करना है? स्टडी सेंटर पे। अगर किसी को फिजिकली जाके सबमिट करना है, वहां पे पर्ची भी लेना है, ठीक है, किस कोर्स के आपने सबमिट किया है, ठीक है। और एक बात है, किसी को अगर वहां पे जाना नहीं होता है तो पोस्ट से भी आप भेज सकते हैं, और उसका ट्रैक आपको रखना है, पहुंचा नहीं पहुंचा वगैरह वगैरह, ठीक है। स्पीड पोस्ट से आप भेज सकते हैं। इनके साथ जो सिटी के बाहर रहते हैं, स्टडी सेंटर से बहुत दूर रहते हैं, उन लोगों के लिए वो सुविधा है, वो भेज सकते हैं, ठीक है। और ये सब सबमिशन इज कंपल्सरी फॉर ईच एंड कोर्स एवरी फॉर द एग्जामिनेशन। और ये असाइनमेंट हर सेमेस्टर को आपको बनाना है, ठीक है। असाइनमेंट को 30 मार्क रहते हैं, 30 मार्क यानी 30% वेटेज है, ठीक है। जैसे कि 100 मार्क का पेपर है आपका, तो 30 मार्क आपको असाइनमेंट से मिलते हैं। उसके बाद 70 मार्क आपको एग्जामिनेशन देना है रिटर्न में, ठीक है, वो सेंटर पे जाके, ठीक है। तो इसलिए असाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास होने में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी टर्म एंड एग्जामिनेशन, टर्म एंड एग्जामिनेशन 2 बार होती है इसमें। सेमेस्टर वालों का हर सेमेस्टर में होता है, और ईयर बेस वालों को ईयर में एक बार होता है, ठीक है। सो जून में और दिसंबर में एग्जामिनेशन होता है, और 1 मार्च से 31 मार्च को आपको एग्जामिनेशन का फॉर्म भरना रहता है। दिसंबर में एग्जामिनेशन फर्स्ट सेमेस्टर से 30 सितंबर तक आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरना रहता है, ठीक है। कौन गणेश? हाँ, मी तुम्हाला पाठवलं ना नंबर? नाही, मेल आयडी पाठवला. हो का, एक मिनट। हाँ, तो पासिंग मार्क्स से उसका 40% में पासिंग मार्क है। असाइनमेंट और थ्योरी कंबाइन करके 40 मार्क है, ठीक है। मान लीजिए कि आपको 30 में से असाइनमेंट में 20 मार्क मिल गए, और 20 मार्क आपको थ्योरी एग्जाम में लेने का, ठीक है। ओके, आ गया समझ में? आ गया समझ में? तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अपने एग्जामिनेशन सेंटर इतने हैं, एक बार देख लीजिए आपका एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ पे भी आ सकता है। जो महाराष्ट्र में रहते हैं उनके लिए, यानी कि महाराष्ट्र में अदर सेंटर भी है, ठीक है। इसलिए ये एक बार लिस्ट देख लीजिए, ठीक है। अपना अपने रीजनल सेंटर के अंडर 8 एग्जामिनेशन सेंटर, जैसे कि नागपुर में अपना जो दुबकाले का एग्जाम होता है वो आरटीएमएनयू में होता है, यूनिवर्सिटी में, आरटीएमएनयू यूनिवर्सिटी में। और जो अभी दिवाली का है, यानी कि हिवाली बोलते हैं ना, विंटर का, वो होता है इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में, ठीक है। और अमरावती यूनिवर्सिटी में एग्जाम होती है अपनी, अमरावती यूनिवर्सिटी संत गाडगे बाबा यूनिवर्सिटी अमरावती। वर्धा में एमजीआईएमएस यानी कि मेडिकल कॉलेज है, सेवाग्राम मेडिकल कॉलेज में अपना एग्जाम सेंटर है। चंद्रपुर में राजीव गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज में अपना एग्जाम सेंटर है। यवतमाळ में बापू साहेब आने कॉलेज है, वहां पे एग्जाम सेंटर होती है, एग्जाम होती है। गढ़चिरौली में गोंडवाना यूनिवर्सिटी है, तो वहां पे एग्जाम होती है। नांदेड़ में पीएन कॉलेज है, बहुत फेमस कॉलेज है नांदेड़ का, ओके, वहां पे होती है, ठीक है। और खामगांव में
GS आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज है, वहां पे होता है। ये खामगांव होता है बुल्डाना डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। ये 8 अपने सेंटर है, इसके अलावा 2 सेंटर अपने है, लेकिन आपके कुछ काम करने क्योंकि वो जेल में रहते हैं, ठीक है, जेल कैदियों के लिए, ठीक है, इसलिए वो बताने की कुछ जरूरत नहीं। आगे बढ़ते हैं। रिजल्ट डिक्लेरेशन, यहाँ पे जाके आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं, आपको मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। राजेश ने भी बता दिया है, ठीक है। सेमिस्टर, हाँ, और एक बात यह है कि हर सेमिस्टर में, ओडीएल में हर सेमेस्टर में आपको रजिस्ट्रेशन, री रजिस्ट्रेशन उसे कहते हैं हम लोग, री रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। राजेश का कई विद्यार्थी परत ज्वाइन करते थे ना, ज्वाइन करूंगी। हर सेमेस्टर में आपको री रजिस्ट्रेशन करना है। एक बार एडमिशन हो गया तो जो भी 4 सेमेस्टर है, 6 सेमेस्टर है, वो चलता रहेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है, हर सेमेस्टर में आपको री रजिस्ट्रेशन करना है। मान लीजिए कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में एग्जामिनेशन दे दिया, रिजल्ट आया नहीं आया उसका संबंध नहीं है। यहाँ पे आपका रिजल्ट आया नहीं आया उसका अगले सेमेस्टर में जाने का कोई संबंध नहीं है। आप अगले सेमेस्टर अगर 5 के यानी कि सबके सब सब्जेक्ट अगर फेल हो गए, रिजल्ट भी नहीं आया, एग्जामिनेशन नहीं दिया, तो भी अगले सेमेस्टर में आप जा सकते हैं। उसको कहते हैं हम लोग री रजिस्ट्रेशन। री रजिस्ट्रेशन कहाँ पे करना है, ये जो पोर्टल है ना, यहाँ पे करना है आप लोगों को, ठीक है। हर सेमेस्टर में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज होता है, मालूम नहीं रहता है, सर हम लोग को मालूम ही नहीं था, आपने भी बताया नहीं। आप हम लोग कैसे बताए भाई, हम लोग इंडक्शन में बताते हैं, जैसे कि आज बता रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से सुनना है इसको, ठीक है, वैसा करना भी है, ठीक है। इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिए। हर सेमेस्टर में आप इसका भी नोटिफिकेशन सोशल मीडिया में आता है, ठीक है। इसका नोटिफिकेशन में हम लोग सोशल मीडिया में डालते हैं। इसलिए मैं फिर से एक बार गुजारिश करता हूँ, हमारा यूट्यूब चैनल जो भी है वो आप सब्सक्राइब कीजिए। अभी जितना भी मैं अभी तक बक चुका हूँ, कितनी बार बोल चुका हूँ, सिर्फ 2 लोगों ने सब्सक्राइब किया है अभी तक। अभी यहाँ पे अपने 150 से ज्यादा स्टूडेंट्स अभी मेरी बात सुन रहे हैं, लेकिन 2 लोगों ने ही सब्सक्राइब किया है। अभी मैंने फिर से एक बार डाला है, जरा आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। मैं जब भी आपके प्रॉब्लम लेके आएंगे तो मैं वो पहले पूछूंगा, बाबा ये हमारा सब्सक्राइब किया था क्या, फिर वहां पे नोटिस पड़ा था क्या, ये नहीं सर मुझे मालूम नहीं, ये नहीं, वो मैं नहीं सुनने वाला हूँ, ठीक है। ओके, तो हर सेमेस्टर में आपको उसका सेमेस्टर का फीस भरना है, ठीक है। ऑनलाइन rr.ignou.ac.in पे जाना है, वहां पे आपको फीस भर के आपको एडमिशन अगला लेना है। आपका रिजल्ट का कोई संबंध नहीं, पिछला कोई भी रिजल्ट आया नहीं आया, एग्जाम दिया नहीं दिया, पास हो गया फेल हो गया, तो भी आप अगले सेमेस्टर में जा सकते हैं, ठीक है। और टाइमली रजिस्ट्रेशन करना है, अगर नहीं किया तो उसका भी फाइन रहता है, ठीक है। ओके, इवेल्युएशन एंड ग्रेडिंग सिस्टम, इसका ग्रेडिंग सिस्टम कैसा रहता है वो आपको बताना चाहता हूँ। आपको अगर प्रैक्टिकल है तो आपको 75% अटेंडेंस कंपलसरी है, ठीक है। प्रोजेक्ट वाइवा जो भी है, मिनिमम 40% का, पीजी का 50% है और यूजी का 40% है, ठीक है। लेटर ग्रेड एंड न्यूमेरिक मार्क्स सिस्टम, और यहाँ पे ग्रेड सिस्टम है, ठीक है। वहाँ पे मार्क नहीं दिया जाता है, ग्रेड्स दिया जाता है, ठीक है। प्रोजेक्ट एंड प्रैक्टिकल का ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, फिर से एक बार बताता हूँ। लैब अटेंडेंस एंड मैनुअल मेंटेनेंस, वाइवा, वो प्रोजेक्ट क्या वाइवा भी होता है, ठीक है, उसको भी अटेंड रहना है। मस्ट पास बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, इंटरनल में भी एक्सटर्नल में भी, दोनों में अलग अलग से पास होना है आपको, ठीक है। रिवैल्यूएशन एंड इम्प्रूवमेंट, रिवैल्यूएशन भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसका कुछ इम्प्रूवमेंट का एग्जाम भी दे सकते हैं, ठीक है, कोर्स वाइज आप दे सकते हैं, ठीक है। रिवैल्यूएशन भी आप भर सकते हैं, ठीक है। रिवैल्यूएशन यानी कि जिसको लगता है कि मैं बहुत लिखा हूँ, बहुत कम मार्क मिल गए, तो वो रिवैल्यूएशन का फीस भर के रिवैल्यूएशन को डाल सकते हैं, ठीक है। अभी सब हो गया, एडमिशन हो गया, सब हो गया, एग्जाम हो गया, पास हो गए, प्रोजेक्ट हो गया, वाइवा हो गया, सब हो गया, आपका अभी डिग्री देना बाकी है। तो यहाँ पे और एक बात चीज बता देता हूँ, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज रहता है या मालूम नहीं रहता है। आपका एग्जामिनेशन कंप्लीट जब होता है, उसमें कंप्लीटेड करके आता है, आपका ग्रेड में पास फेल नहीं आता है, कंप्लीटेड करके आता है। जब आपके सब कोर्सेस यानी सब सब्जेक्ट कंप्लीट रहते हैं, तो तब आपको आने वाला जो कॉन्वोकेशन रहेगा, आगे का कॉन्वोकेशन, पिछले का नहीं, आगे का कन्वेकेशन यानी कि 40वां कन्वेकेशन अभी आने वाला है आपको, आपके लिए मुझे लगता है 2 साल का एमसीए है, तो 42 का कॉन्वोकेशन आपको लगेगा, ठीक है। तो 42 कॉन्वोकेशन का आपका जब नोटिस आएगा, नोटिस कहाँ पे आता है, ये यूट्यूब चैनल
थोड़ा सा गले में दर्द है। तो उसका नोटिस कहाँ पे आता है? हमारे वेबसाइट पे आता है, ठीक है, वेबसाइट पे और हमारे सोशल मीडिया पे आता है, ठीक है। वहां पे आपको देख के कॉन्वोकेशन का एप्लीकेशन करना है आप लोगों को, ठीक है। और उसका फीस अलग से रहता है, वो फीस भी भरना है। आपको जब आप सब कोर्सेज पास हो जाते हो ऑटोमेटिकली आपका जो मार्कशीट है फाइनल, हर सेमेस्टर में मार्कशीट नहीं आती है यहाँ पे, जैसे आपको कन्वेंशन जो यूनिवर्सिटीज है वहां पे आती है हर सेमेस्टर में मार्कशीट, यहाँ पे हर सेमेस्टर में मार्क्स आपके घर पे नहीं आएगा, एक ही फाइनल मार्कशीट आती है। जब आप पास होंगे सब सब्जेक्ट तो ऑटोमेटिकली आपका मार्कशीट और उसके साथ प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट आपको आपके एड्रेस पे घर पे आ जाएगा। इसके लिए आप कहीं पे भी मेल करने की जरूरत नहीं, किसको पूछने की जरूरत नहीं, आप अगर पास हो जाते तो ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पे आ जाएगा, पोस्ट से आ जाएगा। और आपको आपको डिग्री लेना है तो अगले कॉन्वोकेशन की नोटिस निकलेगा, कॉन्वोकेशन को अप्लाई करो। आप अगर खुद जाना चाहते तो जा सकते हैं। कॉन्वोकेशन नागपुर में होता है, पुणे में होता है, ठीक है, दिल्ली में होता है, कहाँ पे भी जा सकते हैं आप लोग। तो कॉन्वोकेशन का फिजिकली अटेंड करना है तो कर सकते हैं, वहां पे ऑप्शन देना है, नहीं कर सकते पोस्ट से भी आपको सॉरी उसको उनका कॉन्वोकेशन का डिग्री का सर्टिफिकेट हमारे पास आ जाता है, हम लोग फिर आपको एड्रेस पे हम लोग भेज देते हैं, ठीक है। डिग्री सर्टिफिकेट सिर्फ हमारे रीजनल सेंटर को आती है अगर आपने बाय पोस्ट अगर एप्लीकेशन दिया है तो, बाय पोस्ट यानी कि बाय पोस्ट देने के लिए, ठीक है। अगर आप फिजिकली अटेंड करना चाहते हो तो फिजिकली अटेंड करो, वहां पे भी जाके मान्यवर जो भी रहेंगे, दिल्ली में गए तो राष्ट्रपति जी रहेंगे, अगर मुंबई पुणे में रहेंगे या नागपुर में रहेगा तो जो भी कोई भी मान्यवर रहेगा उनसे हाथ से आपको डिग्री मिल जाएगी, ठीक है। आगे समझ में? ओके। ये यहाँ पे स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले सकते हैं सब, यहाँ पे एक लिस्ट दिया गया है अपने वेबसाइट जो भी है सबके, ठीक है। ले लिया सब लोगों ने? ठीक है, आगे बढ़ते। ओके, ये जो कुछ टिप्स है, रीड मटेरियल बिफोर सेशंस, पार्टिसिपेट एक्टिवली इन काउंसलिंग, कीप इन टच विद LSC-RC फॉर अपडेट्स। तो कीप इन टच विद LSC-RC फॉर अपडेट्स यानी कि रोज मेल करते नहीं बैठने का, रोज फोन नहीं करने का, ठीक है। क्या करना है कि अगर रिजल्ट नहीं आया बहुत दिन के बाद तो मेल करना है या फोन करना है, ठीक है। प्लान, प्रिपेयर एंड सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन यानी कि कभी भी आप मेल करते हैं तो उसका एनरोलमेंट नंबर वगैरह जो भी डिस्क्रिप्शन लिखना है लिख सकते हैं, लिखना है। और फॉलो RC नागपुर ऑल सोशल मीडिया, ठीक है। ओके, ये हमारा इग्नू नागपुर सोशल मीडिया पूरा है अपने पास। गूगल मैप पे भी है हम लोग, अगर किसी को फिजिकली आना है, आने की जरूरत नहीं है, फोन कर सकते हैं, आपका कुछ प्रॉब्लम है, अगर किसी को आना है तो गूगल मैप पे इग्नू रीजनल सेंटर नागपुर ऐसा डाल दिए तो यहाँ पे आ सकते हैं आप डायरेक्टली, वहाँ पे गूगल मैप पे अपना लोकेशन है। और वहाँ पे गूगल मैप पे आप हमें रिव्यू भी दे सकते हैं, ठीक है। और रिव्यू का हम लोग पढ़ते भी है और उसको आंसर भी देते हैं, अच्छा दे तो भी देते हैं, बुरा दे तो हम सुधर जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे आप रिव्यू दे सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी हम लोग है, फेसबुक पे भी, कहाँ पे भी जाए इग्नू RC नागपुर आप डाल दिए तो वहाँ पे हम लोग है। ट्विटर पे भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है अपना, और यूट्यूब चैनल भी है, ठीक है। ओके, तो इम्पोर्टेंट नोट्स है ये। ऑलवेज कीप अ कॉपी ऑफ सबमिटेड असाइनमेंट एंड रिसिप्ट्स। ये किस लिए कि बाबा एक आधा असाइनमेंट गलत हो गया, गलती से गुम गया, ठीक है, उस केस में आपके पास एक असाइनमेंट की कॉपी रहनी चाहिए, इसलिए वहां पे ट्रैक इन नोटिफिकेशन रेगुलरली ऑन इग्नू वेबसाइट, इग्नू का रीजनल सेंटर का वेबसाइट और इग्नू का मेन वेबसाइट है, देखते रहने का है, ठीक है। कीप डेडलाइंस जो भी असाइनमेंट सबमिशन के, रजिस्ट्रेशन के, एग्जाम फॉर्म के, ये 3 मेन डेडलाइंस है, वो आपको फॉलो करना है। कॉन्टैक्ट योर स्टडी सेंटर फॉर रीजनल सेंटर इफ यू फेस एनी इश्यूज, ठीक है। हाँ, ये अपना फिजिकल एड्रेस है अपना, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी रीजनल सेंटर नागपुर, ये हिंदुस्तान कॉलोनी में है और यूनिवर्सिटी के बाजू में है, RT मेन्यू के बाजू में। यहाँ पे फोन नंबर दिया हुआ है, फोन नंबर जब करते हैं तो वहाँ पे टाइमिंग्स देख लेने का है, ठीक है। वहाँ पे टाइमिंग भी दिखा है और लंच का टाइम भी दिखा है। क्या होता है कि लंच में आप 1:45 को फोन करते हैं, सर यहाँ पे तो कोई नहीं उठाता है बोल के हमको फोन करते हैं, तो लंच में कोई उठाएगा नहीं, क्योंकि उनका टाइमिंग 1:30 से 2 बजे तक लंच का टाइम है, ठीक है। और क्या होता है, आप सेकंड नंबर पे फोन पे करते हैं, हमारे जो वहां पे रिसेप्शनिस्ट बैठी हुई वो फर्स्ट फोन पे जो फोन चल रहा है उनके काउंसलिंग यानी कि उनका जो भी प्रॉब्लम है वो सुनने में बैठी रहेगी। आप दूसरे में फोन करते हो, वो फोन कैसे उठाएगी? नहीं उठाएगी। इसलिए थोड़ा सा ट्राई भी करना है, 2-4 बार लगाना है, पैनिक नहीं होना है। यहाँ पे एक ही स्टाफ है वो देखने के लिए, अगर बार बार करते रहना है और टाइमिंग्स भी देखना है। सैटरडे संडे छुट्टी है, बहुत से लोग सैटरडे करते हैं और बोलते हैं कि सर
मेल करते हैं या रिव्यू भी लिख देते हैं कि बाबा हमारा फोन ही नहीं उठाते, ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे फोन उठाते हैं और जवाब भी देते हैं, ठीक है। हेलो हेलो टाइमिंग, सर, डेट्स प्रैक्टिकल और की फीस डेज देनी ये पड़ती है क्या? फॉलो करना है, ठीक है। ओके, हेलो सर, प्रैक्टिकल की फीस जमा करनी पड़ती है क्या? हेलो, मैं जब तक नहीं कहूंगा तब तक कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। हाँ, तो अभी आप सब लोगों को आपको और किसी को कुछ मेल लिखना है तो आसिन SSS यानी कि स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम @igno.ac.in, यहाँ पे आपको मेल करना है, ठीक है। यहाँ पे मेल करना है, यहाँ पे फोन करना है, ठीक है। तो हम लोग तुरंत आपको, तुरंत यानी कि थोड़ा उसको भी थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि मेल्स बहुत आते हैं हम लोग को। वो मेल्स में बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि असाइनमेंट किधर भेजूं, एड्रेस क्या है। अभी एड्रेस भी हम लोग बताना है क्या, कहाँ पे देना है, सब पता है आपको, स्टडी सेंटर कहाँ पे है, क्या है क्या नहीं, ये आपने प्रोग्राम गाइड में सब लिखा है, ठीक है। इसलिए ऐसे ऐसे छोटे छोटे मेल्स मत भेजिए, अगर कुछ सीरियस है तो मेल्स वगैरह कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। ओके, और अभी मैं ये जो एंड करने जा रहा हूँ, लेकिन एंड करने से पहले और एक चीज बताता हूँ। अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग ज्वाइन है, 144 लोग हैं। तो मैं जो लोग हैंड रेज किया है उनका एक एक के नाम लेता हूँ, वो लोग पूछना है, बाकी के लोग सुनना है, क्योंकि कॉमन क्वेश्चंस बहुत सारे लोगों के कॉमन क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन रहेगा, बाकी का सॉल्व हो गए तो ऑटोमेटिकली आप हाथ नीचे कर लेने का है, ठीक है। इसलिए आप लोग जो भी क्वेश्चन पूछना है वो लोग हैंड रेज कीजिए, मैं जिसका नाम लूंगा वो लोग ही बात करना है, नहीं तो सब लोग इकट्ठा बात करेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा और आंसर भी नहीं मिलेगा, ठीक है। मैं एक एक को लेता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे प्रेजेंटेशन तो खत्म हो गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी अभी पहला हम पूछते हैं खुशी वंजारी। खुशी वंजारी प्लीज। हेलो सर। यस। सर मुझे ये पूछना था कि एमसीए ऑनलाइन वालों को असाइनमेंट्स कहाँ सबमिट करना है? राजेश। एमसीए ऑनलाइन में आप एलएमएस पोर्टल में भी सबमिट कर सकते हैं, बट एलएमएस पोर्टल में आप अपलोड करने के बाद एक कॉपी आप रीजनल सेंटर में भी सबमिट कीजिए। जो आप ऑनलाइन पीडीएफ बना के सबमिट करोगे, अपलोड करोगे एलएमएस पोर्टल पे, उसी Yes. का हार्ड कॉपी आपको रीजनल सेंटर में भी सबमिट करना है, ठीक है। यस सर। सर ये रीजनल सेंटर मतलब आपका हमारा स्टडी। क्वेश्चन सुनिए, सब लोग सुनिए, आपका क्वेश्चन शॉर्ट रीजनल में सेंटर ही रहना स्टडी चाहिए, सेंटर है आपका, ठीक है। यस सर, ओके, थैंक यू। शॉर्ट में पूछना है, फटाफट पूछना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट रहेगा रितेश पाटिल। रितेश पाटिल। अंजुमन कॉलेज की दूर है? रितेश पाटिल नेक्स्ट। यस सर, यस सर, हाँ, रितेश बाबा बोला। यस सर। मेरी क्वेरी ये है सर हाँ कि फर्स्टली असाइनमेंट डिटेल्स और असाइनमेंट का पूरा डाटा ऑनलाइन है, लेकिन सबमिट करना है 31/10/25। हाँ, उसके सही है। बाद में एग्जाम फॉर्म की लास्ट डेट सर 20 है सर, मतलब 2 दिन बाद। हाँ, तो आज कल में ही एग्जाम फॉर्म सबमिट करना है। यस सर, और असाइनमेंट सबमिट करना है आरसी नागपुर को बाय पोस्ट और ऑनलाइन दोनों, मेल से और ये दोनों। आपका प्रोग्राम क्या है? एमएससी एनवायरमेंट साइंस सर। आई एम फ्रॉम अमरावती महाराष्ट्र, लेकिन मैं देखिए, औरंगाबाद में जॉब करता हूँ सर। देखिए आपका ओडीएल प्रोग्राम है, ठीक है। यस ये सर, जो यस सर। एलएमएस पोर्टल और रीजनल सेंटर में सबमिट करना है वो सिर्फ ऑनलाइन प्रोग्राम के जो स्टूडेंट है उन्हीं के लिए है। जैसे एमबीए ओएल, बीसीए ओएल, एमसीए ओएल, इन्हीं के लिए है, ठीक है। बाकी जो स्टूडेंट है उनको अपने स्टडी सेंटर में ही आपके असाइनमेंट सबमिट करना है, इधर नहीं भेजना है रीजनल सेंटर में। स्टडी सेंटर आपके एडमिशन फॉर्म में लिखा हुआ है। एमएससी यस सर, एनवायरमेंट के लिए मेरा आपका नागपुर है सर। नागपुर आरसी में नागपुर। आपका इंस्टीट्यूट, देखिए आपका रीजनल सेंटर नागपुर है, बट स्टडी सेंटर है इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एमएससी एनवायरमेंट के लिए। तो आपको इंस्टीट्यूट ऑफ सर। साइंस में ही सबमिट करना है, ठीक है। ओके सर। आपका जो स्टडी सेंटर है वहीं पे आपको आपका असाइनमेंट सबमिट करना है। ओके सर। हाँ, फिर से नेक्स्ट। एक बार क्लियर करता हूं कि आपका जो स्टडी सेंटर है वहीं पे सबमिट करना है। ये रीजनल सेंटर है, रीजनल सेंटर यानी कि 14 डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे ऑफिस है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन होता है, यहाँ पे पढ़ाई नहीं होते, ना असाइनमेंट लिया जाता है, सिर्फ असाइनमेंट उनके लिए जाता है। यहाँ पे रीजनल सेंटर से जो 3600 में जिसका एडमिशन हुआ है उनका ही यहाँ पे असाइनमेंट या जो भी है वो लिया जाता है, बाकी किसी ओके का सर, नहीं लिया जाता है। मतलब अगर ओनली जो अगर मेरा स्टडी आपने सेंटर है वहाँ पे हेलो ये रीजनल रितेश, एडमिनिस्ट्रेशन है, रितेश एडमिन। रितेश ऐका, ओके सर. मराठी कळते ना? हो सर, मराठीच आहे. परवा पण तुम्ही भरपूर क्वेश्चन विचारले बरोबर. हो सर.
तर तुम्ही ऐका आणि सब लोग सुनिए. रीजनल सेंटर ये अलग चीज है, स्टडी सेंटर अलग चीज है. आपका एडमिशन स्टडी सेंटर में होता है. स्टडी सेंटर में होता है तो आपका असाइनमेंट स्टडी सेंटर को ही भेजना है फिजिकली. आप आ जाके वहां पे सबमिट करना है और पर्ची भी लेना है. अगर बाहर के लोग हैं यानी कि बहुत दूर लोग रहते हैं, वो स्पीड पोस्ट से भेजना है, स्टडी सेंटर को ही भेजना है. रीजनल सेंटर को कोई नहीं भेजेगा. रीजनल सेंटर को कौन भेजेगा? जिनका स्टडी सेंटर रीजनल सेंटर है. इग्नू रीजनल सेंटर स्टडी सेंटर ऐसा करके आता है और उसका कोड है 3600. जिनका भी है वो हमें सबमिट करना है यहाँ पे. इसके अलावा कोई अगर आ गया तो उनका यानी कि असाइनमेंट के मार्क चढ़ेंगे नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा. ठीक है, ओके. नेक्स्ट मयूर गौतम. यस मयूर सर. गौतम. हाँ जी सर. सर सर मैं जी, ये अपना पूछ रहा सर कि एक्चुअली सर मैंने कई सारे ईमेल किए थे. मैं सर फिलहाल दिल्ली में हूँ. मुझे अपना रीजनल सेंटर चेंज करवाना था. मेरा सर कोर्स है एमएससी जियो इन्फॉर्मेटिक्स. जी सर. तो वो मुझे दिल्ली शिफ्ट कराना था, लेकिन मुझे वहाँ भी मैंने ईमेल वगैरह किया और मैंने उनसे फिजिकल भी बात की. लेकिन सर मेरा वो मतलब अब तक सर चेंज हुआ नहीं है. हो जाएगा आपका. ठीक है, वहाँ पे उनको एनओसी और जो वहाँ का कुछ अड़चन है कि उनको लेने के लिए वहाँ पे सेंटर है क्या? एक सर वहाँ पे सेंटर है सर, है सर. मयूख जी. देशपांडे जी. और मैंने मयूख जी. जी सर. बोलो. हाँ बोला सर. देशपांडे सर. कहाँ से कहाँ, नागपुर से जी सर. दिल्ली चेंज करवाना है क्या आपको? हेलो, जी सर एक्चुअली हाँ सर. मैं कहाँ पे? जी सर दिल्ली में? नागपुर से दिल्ली करवाना है. दिल्ली में 3 रीजनल सेंटर है, दिल्ली 1, दिल्ली 2, दिल्ली 3. सर दिल्ली 3 सर. दिल्ली 3. दिल्ली 3 को आप एनओसी मांग लीजिए उनसे. जी सर मैंने एनओसी के लिए लिखा है सर. ना? हाँ, तो अभी 2-3 हफ्ते हो गए सर. कैसे भी एनओसी आ जाएगा. उस एनओसी के साथ में आरसी नागपुर को मेल कर दीजिएगा, आपका रीजनल सेंटर चेंज हो जाएगा. जी सर. ऑल राइट सर. ठीक है? सर एक और सवाल था सर. जी सर. सर बहुत ज़्यादा समय नहीं लूंगा सर. बस सर जो एमएससी जियो इन्फॉर्मेटिक्स का जो कोर्स है सर, बोलिए. हमारा जो प्रैक्टिकल एग्जाम है सर, वो हमारे स्टडी सेंटर में ही होगा या सर जो हमने. जी जी. ओके सर. स्टडी सेंटर जो है शेड्यूल जो प्रिपेयर करेगा, वो शेड्यूल आपको भी शेयर किया जाएगा. उस समय जाकर आपको अटेंड करना होगा. जी सर. जी सर. नेक्स्ट ठीक है? सतीश जी सर. थैंक यू. शिंगणापूरकर. सतीश शिंगणापूरकर. येस सर. शरीश शिंगणापूरकर. ओके सॉरी. यस बोला. सर माझा क्वेश्चन हा होता की प्रॅक्टिकल एक्झाम याच्या स्टडी सेंटरवर जाऊनच द्यावं लागते. हो. बरोबर. प्रॅक्टिकल एक्झाम जी आहे त्याचं शेड्यूल स्टडी सेंटर तयार करते आणि तिथे जाऊन तुम्हाला ते अटेंड करायचं आहे. काय ओके सर. सर नेक्स्ट क्वेश्चन हा होता की असाइनमेंट ची इन्फॉर्मेशन परत सांगा ना. असाइनमेंटची डेट, इन्फॉर्मेशन सर. डेट नाही सर. काय पाहिजे Download. असाइनमेंट? असाइनमेंटचं दाखवलं ना तुम्हाला पोर्टल, तिथून डाउनलोड करू शकता तुम्ही आत्ताच. ओके सर. इग्नूच्या वेबसाईट वर व्हिजिट करून स्टुडंट सपोर्ट वरती क्लिक करायचं. तिथे डाउनलोड वर क्लिक केल्यानंतर तिथे असाइनमेंटचं ऑप्शन देईल. तिथनं तुम्हाला तुमच्या विषयाचे असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करायचे आहे. ओके थँक्यू सर. ठीक है, समझलं का? ओके. नेक्स्ट आहे कृती रविकांत. यस सर. हाँ बोलिए. हेलो yes. सर, अभी उस पे ऑनलाइन चेक किया था तो फॉर दिसंबर टर्म एंड एग्जाम उसमें 7 सब्जेक्ट्स हैं जो शो हो रहे हैं एलिजिबल फॉर अपियरिंग फॉर द टर्म एंड एग्जाम. तो इज इट मैंडेटरी टू अपियर फॉर ऑल द 7 सब्जेक्ट्स? ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ. आपको कितना देना है दे सकते हैं. उसमें से आपको जो देना है सिलेक्ट कीजिए, उसका फीस भरिए, सेंटर चूज कर दिए और बस जाना है आगे बढ़ के. ठीक है, आपको देना है नहीं देना है कुछ भी कर सकते हैं आप. ठीक है, सब देना है सब दे सकते हैं. आगे के एग्जाम आगे के कोर्स नहीं दे सकते, पीछे के सब दे सकते हैं. ठीक है, आगे अगले सेमेस्टर में पीछे के सब सब्जेक्ट दे सकते हैं. ठीक है, एंड देन वो ऐड हो जाएंगे आगे वाले सेमेस्टर में. राइट, हो गया आपका क्वेश्चन हो गया. राइट. हाँ जी, थैंक यू सर. हाँ ओके. सोफिया परवीन. सोफिया जी. हाँ बोलिए.
क्वेश्चन है, मेरे फादर के नेम में मेरे हस्बैंड का नेम आ रहा है एग्जाम नहीं सोफिया जी जी। वो तो आपने ही भरा है ना फॉर्म, तो क्या हुआ नहीं नहीं, उसमें? हाँ एक मिनट सर, देशपांडे सर, देखिए वहां पे जो आप बता रहे हैं कि फादर नेम में आपके हस्बैंड का नाम आ रहा है, सही है? जी हाँ, तो वो एग्जाम कैसा है? हाँ हाँ, देखिए वो फादर नेम ऑब्लिक मदर नेम ऑब्लिक हस्बैंड नेम होता है, ठीक है? तो वो वरी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? जी ओके, ठीक है, करके होता है, ठीक है? तो आप टेंशन मत लीजिए, वो हस्बैंड नेम ही है, अगर हस्बैंड का नाम होगा तो, ठीक है? ओके। स्नेहल बागड़े। यस सर, एम आई ऑडिबल? हाँ यस, बोला सर। मुझे ये पूछना था कि हमारे जो असाइनमेंट्स है उसमें एक्चुअल वर्ड काउंट कितना है? बिकॉज मैं पहले मतलब मेरा बैचलर्स डिग्री भी इग्नू से ही है, तो उसमें वर्ड काउंट एकदम स्पेसिफिक होता था कि आपको एक आंसर 600 वर्ड्स में लिखना है। इवन क्वेश्चन पेपर में भी 600 वर्ड्स का लिमिट होता था। हालांकि इस वक्त कोई भी वर्ड काउंट मेंशन नहीं है, तो हाउ शुड वी राइट द असाइनमेंट्स? मतलब वो ऐसा पैराग्राफ बेस्ड होना चाहिए, बहुत डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, या एकदम क्रिस्प होना चाहिए दैट इफ इट इज फॉर 20 मार्क्स यू शुड राइट क्लियर स्ट्रेट फॉरवर्ड 20 पॉइंट्स? तो वो मुझे थोड़ा डाउट है उसमें, बिकॉज मैंने स्टार्ट कर दिया असाइनमेंट लिखना इसीलिए। आपको डिस्क्रिप्टिव ही लिखना है मैडम। ओके हाँ ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके। नेक्स्ट, एक मिनट, नेक्स्ट हरीश पेंडपले। हरीश पेंडपले, हॅलो, हाँ बोला। आय एम ऑडिबल? हाँ यस। सर ऍक्च्युली माझा क्वेश्चन हा आहे की जसं की आता रिजनल सेंटर हे आहे जिथे काय तुमचं म्हणजे सगळ्यांचं ऍडमिनिस्ट्रेशन चालतं. सो माझं जे विषय आहे MSc जिओइन्फॉर्मॅटिक्स, त्याचं स्टडी सेंटर सर काय आहे एक्झॅक्टली ते मला सर समजत नव्हतं. सो मी सारखे दिल्लीचं जे ऑफिस आहे तिथे मी कॉल करत होतो. ते म्हणत होते की तुम्हाला असाइनमेंट वगैरे सगळं तिथे दिलेलं आहे, फक्त तुम्हाला स्टडी सेंटरवर सबमिट करायचं. बट आय एम कन्फ्यूज की स्टडी सेंटर कोणतं आहे, महाराष्ट्रात आहे की MRSEC जे आहे रिमोट सेन्सिंग चं ऑफिस ऍप्लिकेशनचं, महाराष्ट्र रिजनल रिमोट सेन्सिंग ऑफिस, तो तिथे द्यायचा आहे का तिथे दिल्लीमध्ये बनवायचं? तुम्ही रिजनल सेंटर नागपूर घेतलेलं आहे का? येस. हा, तर मग तुमचे जे असाइनमेंट्स आहे आमच्या रिजनल सेंटरला तुम्हाला सबमिट करायचे ते. ओके ओके, म्हणजे हे पण आता आता जे तुम्ही बोलताय म्हणजे तुम्हाला सबमिट करायचंय ना सर? हो, आम्हाला सबमिट करायचंय. तुमचं जे LSC आहे ते रिजनल सेंटर मध्येच आहे. ओके ओके सर, थँक्यू. कारण तेच मला थोडंसं कन्फ्युजन होत होतं. पण आणि तुमचं दुसरं सर म्हणजे नागपूरच आहे ना नक्की? हो सर, हो, नागपूरच दिलेलं आहे मी. हैदराबाद आणि नागपूर होतं, मी नागपूर चूज केलंय. हॅलो. आणि आणखी एक तर माझा क्वेश्चन आहे, जो जिओइन्फॉर्मॅटिक्सचे जे प्रॅक्टिकल आहे सॉफ्टवेअर बेस्ड, मग तेही रिजनल सेंटर मध्येच होणार आहेत का? ते ज्यावेळेस कंडक्ट करू त्यावेळेस त्याच्यामध्ये ऍड्रेस दिलेला असेल सर. आणि सर असाइनमेंट आणि जे थेरी मार्क आहेत त्यांचं सेपरेट पासिंग आहे की कंबाईंड पासिंग आहे? ते सेपरेट मगाशी सर स्लाइड मध्ये 40% होतं, म्हणजे प्लस असं करून. करेक्ट आहे, दोन्ही मध्ये वेगवेगळं पास व्हायचंय तुम्हाला. ओके सर. 100 आउट ऑफ 30%, 100 आउट ऑफ 70%. दोन्ही मध्ये क्लिअर झाल्यानंतरच कम्प्लिटेड शो करेल तुमचं सब्जेक्ट. ओके, कारण आता सर जे आपलं असाइनमेंट आहे ते 100 मार्क्सचं आहे आणि एक्झाम जी थेरी एक्झाम होणार आहे ती 50 मार्कची आहे. आणि प्रॅक्टिकलचं सर मार्किंग त्यांनी दिलेलं नाहीये त्याच्यामध्ये. तेच सांगतो मी तुम्हाला, ते त्याच्यामध्ये दोन्ही मध्ये आहे, तिन्ही मध्ये वेगवेगळं पासिंग तुम्हाला झालं पाहिजे. ओके. 50 मार्काचं असेल तर त्याच्यामध्ये 18 मार्क्स मिनिमम तुम्हाला पाहिजे त्याच्यात. ओके सर. दुर्गा जैन नेक्स्ट। दुर्गा जैन। हेलो सर, मेरे को ये पूछना है कि प्रैक्टिकल सेशन जो शेड्यूल होंगे वो मेल आएगा कि स्टडी सेंटर में जाके कंफर्म करना? नहीं, मेल आएगा उसका। ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। शिल्पा यादव। गुड आफ्टरनून सर. छोटासा प्रश्न होता अगदी बोला. की आम्हाला जे स्टडी मटेरियल आहे ते मी ऑनलाईन म्हटलेलं आहे,
पण जेव्हा आपण त्या ज्ञानकोश मध्ये जातो आणि डाउनलोड करायला जातो तर ते येत नाही, म्हणजे डाउनलोडेड मटेरियल दिसत नाही. तर काही स्पेशल फॅसिलिटीज अवेलेबल आहेत का की ज्याच्यातून मला ते क्लिअर मिळेल? नाही नाही नाही, ते स्पेशल फॅसिलिटी असं काय नाही, ई ज्ञानकोश मध्ये सगळं डाउनलोड होते. कुठला प्रोग्राम आहे तुमचा? MBA आहे सर. MBA तर डाउनलोड होते ना, का होत नाही? नाही सर, ऍक्च्युली तिथे ते लिंक देतात डाउनलोड केल्यानंतर. मी प्रयत्न केला पण मला काही ते विशेष जमलं नाही. आज काहीतरी त्या साईटला प्रॉब्लेम असेल, उद्या करून बघा. ठीक आहे, ठीक आहे, ठीक आहे. थँक्यू सो मच सर. थँक्यू सो मच. जयदीप बोरवाडकर. नमस्कार सर. नमस्कार. हा बोला सर, मी मास्टर ऑफ सायन्स जिओ इन्फॉर्मेटिक्स करत आहे आणि मला फक्त एवढंच विचारायचं सर, ते जुने पेपर मला डाउनलोड करता आले नाहीत आणि फक्त 70 मार्क्सची थेअरी पेपर असणार का 50 मार्क्स? ते कन्फ्युजिंग होतं सर मला. देशपांडे किंवा राजेश कोण आहे? क्वेश्चन पेपर, ओल्ड क्वेश्चन पेपर साईट वरती अवेलेबल आहे. ठीक आहे, तिथे समजा 50 मार्काचा क्वेश्चन पेपर असेल तर 50 पैकी 20 पासिंग आहे. ओके. साईट वरती अवेलेबल आहे. तुम्ही ignou.ac.in वेबसाईटला व्हिजिट करायचं. तिथे स्टुडंट सर्व्हिसेस वर क्लिक करायचं. त्यानंतर डाउनलोड वर क्लिक केल्यानंतर तिथे तुम्हाला ऑप्शन मिळेल असाइनमेंट, प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन पेपर. तिथनं तुम्हाला तुमच्या विषयाचे क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करता येईल. ओके सर. आणि मला विचारायचं, आमचं ते आता जिओ इन्फॉर्मेटिक्सचं प्रॅक्टिकल सेशन इकडे नागपूर सेंटरलाच आहे आमचं. ओके, मग सर ते शनिवारी असतं का मध्ये पण असतं कधी? नाही, ते तुम्हाला इन्फॉर्म केल्या जाईल सेंटरवरनं. तो 9 वाजता जेवतो, घरी जाऊन जेवेल. ठीक आहे. नेक्स्ट तपन. हेलो सर, ये एग्जाम फॉर्म भरते टाइम पेन, पेपर और सीबीटी का ऑप्शन आ रहा है, तो किस में वैल्यूएशन लीनियंट होता है? मतलब देखिए, आपका शायद ऑनलाइन प्रोग्राम होगा, सही है? यस सर. हाँ, तो ऑनलाइन प्रोग्राम जिन स्टूडेंट का है उनके पास 2 ऑप्शन होते हैं. एक होता है सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसका एग्जाम सेंटर में जाकर ही होगा. ठीक है, बट उसमें कंडीशन ये है, आपको आंसर टाइप करके देना है और वो शायद नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा. अगर आपका टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छा है तो ही सीबीटी ऑप्शन ऑप्ट करना अच्छा रहेगा. अदरवाइज पेन एंड पेपर का ही ऑप्शन सिलेक्ट करना है. अच्छा, ठीक है सर. और एक सवाल था सर, अगर सीबीटी चूज करता हूं तो उसमें फॉर्मूला वगैरह लिखना, मैंने कभी दिया नहीं सीबीटी टेस्ट, तो उसमें अगर स्पेशल साइंस वगैरह रहते हैं, फॉर्मूला अगर लिखना है तो वो उसमें रहेगा क्या? लिख पाऊंगा मैं? मतलब बहुत अवगढ़ रहता है वो तपन जी, बहुत अवगढ़ रहता है. पेन एंड पेपर वाला ही ऑप्शन ठीक रहेगा सर. ऑफलाइन ही ठीक है. ठीक है. यहाँ पे आने के बाद बहुत सारे लोग वो देख के ही फिर इसमें बैठ जाते. ठीक है. अच्छा, ठीक है सर. मैं पेन एंड पेपर चूज करूंगा. और सर एलएमएस में लॉगिन नहीं हो रहा है, उसका कुछ इशू है क्या अभी ऑनलाइन? अभी शायद उन्होंने डाटा साइट पे अपलोड नहीं किया होगा, इस वजह से वो इशू हो सकता है. बट आप हार्ड कॉपी जो असाइनमेंट का है वो आपको रीजनल सेंटर में सबमिट करना है. वो आपको ध्यान में रखना है. भले ही अगर आप एलएमएस में अपलोड करते तो भी हार्ड कॉपी आप यहाँ पे सबमिट करना है. ठीक है. अच्छा, ठीक है. थैंक यू सर. हो गया. नमस्कार सर, मी सुनील काळे. सर माझे 2-3 क्वेश्चन्स आहेत. सर माझा पहिला क्वेश्चन आहे की मला जे असाइनमेंट सबमिट करायचे आहे, माझ्या पूर्ण असाइनमेंट लिहिणं झाले आहे. मी हैदराबादला असतो, तर मी आता दिवाळीला येताना त्या असाइनमेंट नागपूरला घेऊन येईल. त्यानंतर त्या असाइनमेंट मी कोणाच्या हाताने पाठवून सबमिट करू शकतो का? आणि दुसरा क्वेश्चन माझा सर 2 मिनिटं सर प्लीज, मी 3 क्वेश्चन एका वेळेस विचारतो. ठीक आहे. दुसरा क्वेश्चन सर माझा एबीसी आयडी रिलेटेड आहे. माझं नाव सुनील अशोकराव काळे आहे आणि 10वीच्या मार्क्स लिस्टवर काळे सुनील अशोकराव आहे. तर त्यामुळे मी ती एबीसी आयडी तिथे अटॅच नाही करू शकत आहे. तर त्यासाठी आपण कॉलेजमधनं काही करू शकतो, म्हणजे रिजनल सेंटर मधनं काही करू शकतो का? आणि तिसरा क्वेश्चन माझा असा आहे सर की जर मी सॅटर्डे संडेला मला 2 दिवस सुट्टी असते, त्या दिवशी येऊन माझ्या असाइनमेंट वगैरे मी सबमिट करू शकतो का? हे बघा, पहिला जो क्वेश्चन आहे त्यामध्ये तुम्ही असाइनमेंट तुमच्या मित्राच्या हाताने किंवा रिलेटिव्हच्या हाताने स्टडी सेंटरला सबमिट करताय. ठीक आहे. दुसरा आहे तुमचं एबीसी आयडी. ठीक आहे. एबीसी आयडीचा इश्यू हा महाराष्ट्रात खूप जास्त आहे, कारण महाराष्ट्रामध्ये मॅक्सिमम जे स्टुडंट आहेत ते स्टेट बोर्डचे आहे आणि त्यांचं जे नाव आहे ते सरनेम पासून सुरू होतं. बरोबर. त्यामुळे तो लिंक होणारच, ते लिंक होणारच नाही. माझ्या नावामध्ये पण तोच प्रॉब्लेम आहे. ठीक आहे.
बट त्यामुळे तुम्हाला एक्झाम मध्ये असा काही प्रॉब्लेम येणार नाही. एक्झाम देता येईल, त्याचा रिझल्ट वगैरे सगळं डिक्लेअर होईल. आणि तिसरा क्वेश्चन काय होता तुमचा? तिसरा क्वेश्चन तर माझा असा होता की सॅटर्डे संडेला मी माझ्या असाइनमेंट तिकडे स्टडी सेंटरला हे सबमिट करू शकतो का? स्टडी सेंटर कुठला आहे? प्रोग्राम काय आहे तुमचा? माझा सर MBA ऑपरेशन मॅनेजमेंट नागपूर स्टडी सॅटर्डेला सेंटर. करता येईल तुम्हाला, संडेला नाही. त्यांचा टायमिंग इग्नू नागपूरच्या वेबसाईटवर स्टडी सेंटर लिस्ट मध्ये चेक करायचं. टायमिंग मध्ये समजा तुम्ही तिथे जाल तर सबमिट करता येईल. ठीक आहे. ओके. आणि सर एक छोटा डाऊट होता रिगार्डिंग सर असाइनमेंट आणि जो 70 मार्काचा पेपर आहे त्यामधनं जर मला असाइनमेंट मध्ये 30 मार्क्स मिळाले आणि मला माझं पासिंग 40 आहे आणि मी ऑन पेपर जर का 10 मार्क घेतले तर मी माझा तो कोर्स कम्प्लीट करू शकेल का? हे बघा, असाइनमेंट मध्ये आणि एक्झाम मध्ये दोन्ही मध्ये इंडिव्हिज्युअल पासिंग आहे, जे की MBA मध्ये 40% आहे. ठीक आहे. म्हणजे त्या MBA मध्ये ग्रेडिंग सिस्टम असतं, ABCD मिळतं. त्यामुळे मिनिमम पासिंग तुम्हाला C ग्रेड घ्यायचं आहे. असाइनमेंट मध्ये पण एक्झाम मध्ये पण. असाइनमेंट मध्ये समजा D मिळालं, एक्झाम मध्ये C मिळालं तर असाइनमेंट तुमचं बॅक आहे. नवीन असाइनमेंट लिहून जमा करायचं. सेम एक्झाम मध्ये D मिळालं, असाइनमेंट मध्ये C आहे तर पुन्हा एक्झाम द्यायची. मिनिमम C ग्रेड तुम्हाला घ्यायचं आहे MBA प्रोग्रामचे जे स्टुडंट आहेत त्यांना. ठीक आहे. बरं. ओके सर. नेक्स्ट. धन्यवाद. नेक्स्ट अंश बिसेन. हेलो। हाँ, अंश बिसेन बोलिए। सर जैसे असाइनमेंट जैसे हम कंप्लीट करते हैं और अपने स्टडी सेंटर में जाते हैं तो सर वहाँ पे भी असाइनमेंट के फीस पे करना है क्या? नहीं बाबा, नहीं कुछ नहीं। सिर्फ और एक एग्जाम बात फीस ही बताता आप- हूँ सबको, एक मिनट और एक बात बताऊँ, मैं भूल गया एक्चुअली। आपको एडमिशन की फीस वो ऑनलाइन भरना है, एग्जाम फीस ऑनलाइन भरना है, रजिस्ट्रेशन फीस ऑनलाइन भरना है, कॉन्वोकेशन जब पास होते तो कॉन्वोकेशन फीस भी आपको ऑनलाइन ही भरना है। यहाँ पे फिजिकली कैश किसी को देना नहीं है, किसी लिंक पे डालना नहीं है, किसी व्हाट्सएप पे डालना नहीं है, किसी के फोन पे डालना नहीं है। अगर मांगता है तो सिर्फ मुझे बताना है यहाँ पे, ठीक है? मुझे बताना है, मैं रीजनल डायरेक्टर हूँ, उनका स्ट्रिक्टली एक्शन दिया जाएगा। किसी को भी कुछ भी यहाँ पे चैनल करके मैं असाइनमेंट लिख के देता हूँ, ये करके देता हूँ, ऐसा भी आ सकता है आप लोगों को, ठीक है? तो किसी को रिस्पांस नहीं देना है, किसी को पैसे देना नहीं है। ये 4 के अलावा किसी और ये 4 भी ऑनलाइन लेते हैं हम लोग, और वो भी वेबसाइट से ही लेते हैं, ठीक है? मुझे भेजो, मैं लिंक भेजूंगा, ऐसा नहीं है, ठीक है? आप सब लोग सुन लीजिए. सगळ्यांना परत एकदा सांगतो, कुठल्याही प्रकारचा कोणीही पैसे मागत असतील, कुठल्याही प्रकारचे पैसे असतील, काही असेल तर द्यायचं नाही. त्यांचं नाव मला गोपनीयपणे मला सांगायचंय, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। अंश का हो गया। अभी नेक्स्ट है वृत्तिक भोपे। हेलो सर, वृत्तिक नमस्कार भोपे. सर। नमस्कार, बोला। सर माझा प्रश्न हा होता की प्रॅक्टिकल तुम्ही म्हटलं 75% अटेंडन्स पाहिजे, राईट. तर जे प्रॅक्टिकल सेशन आहे ते किती दिवसाचं राहील? ते डिपेंड करते तुमची प्रॅक्टिकल किती आहेत ते. माझं MSc एन्व्हायरमेंटल सायन्स आहे सर. आता त्याच्यात किती आहेत बघा, त्यानुसार. अहो साहेब, मी काय म्हणतो, सगळे 100% प्रेझेंट राहा ना. असं नाही का सर, मी असं का 100% राहील सर. मग- माझा प्रश्न हे होता की किती दिवसाचं सेशन किती दिवस राहील आणि ते सॅटर्डे संडे राहतील की हे बघा, आपल्याकडे विद्यार्थी समजा 20 विद्यार्थी आहेत आपल्याकडे, ठीक आहे? समजा हा, सर. प्रॅक्टिकल करण्यासाठी आपल्या इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स असेल, ज्या ठिकाणी प्रॅक्टिकल होत असेल, आपण सगळ्यांना शेड्यूल पाठवतो. त्यामध्ये बरेचसे विद्यार्थ्यांना माझं आता होईना, मला सुट्ट्या नाही भेटत, या असं एकाला सुट्ट्या भेटतं तर दुसऱ्याला भेटत नाही, दुसऱ्याला भेटतं तर तिसऱ्याला भेटत. त्यामुळे शेड्यूल जे फायनल होईल ते फायनलच राहील, कोणासाठी चेंज होणार नाही. आणि सुट्ट्या, आणि तुम्ही म्हणत असेल मला 2 दिवस एक्सक्यूज द्या, 3 दिवस, हे काही होणार नाही. आता सांगू टाकतो मी, जे शेड्यूल होईल ते फायनल होईल, त्या शेड्यूलला तुम्ही यायचं. नाही येत असेल तर पुढच्या शेड्यूललाच यावं लागेल तुम्हाला. पुढचं शेड्यूल ज्या वेळेस असेल त्यावेळेस. परत विचारत बसायचं नाही, परत मेल करत बसायचं नाही, मग परत कधी होणार, मग मला आता सुट्टी आहेत, मी असं होणार नाही, ठीक आहे? ओके सर, थँक्यू सर. ओके, नेक्स्ट 806 अंकित। हेलो सर। हाँ, यस, बोलिए। सर मैं चंद्रपुर से हूँ सर। तो मैं जब RC में आया था तो सर ने बताया था कि चंद्रपुर का सेंटर बंद हो चुका है सर, तो असाइनमेंट्स कहाँ पे देना है सर? राजेश का प्रोग्राम क्या है? चंद्रपुर में जो है, आप चाहिए तो एग्जाम दे सकते हो। आप ओके कहाँ सर। से? चंद्रपुर से हो क्या? हाँ सर।
अंकित जी, हाँ सर, हाँ सर। और आपके असाइनमेंट चाहिए तो वो भी आप बाय पोस्ट सबमिट कर सकते हो। नागपुर में सर? हाँ, नागपुर में, ओके सर। है ना? हाँ सर। कोई प्रॉब्लम हाँ। नहीं, थैंक यू सर। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप नागपुर को भेज दीजिए, हम लोग देख लेंगे। चंद्रपुर का सेंटर बंद हो गया, यानी कि वो एक्चुअली यूजीसी का नियम से वो हो गया है। आपको कुछ नहीं, वहां पे एग्जाम दे सकते हैं आप, ठीक है? ओके सर। ये देखो, स्टडी सेंटर का और एक्चुअली का एक कुछ संबंध है, सिर्फ असाइनमेंट सबमिशन के लिए ही है। आप बोलेंगे स्टडी सेंटर यानी कि बहुत बड़ा ही है, ऐसा कुछ नहीं है। स्टडी सेंटर है तो ये एडमिशन लेने, ऐसा भी कुछ नहीं है। ओके सर। एडमिशन ले सकते हैं, अभी ऑनलाइन है, सब कुछ ऑनलाइन कर सकते हैं। सिर्फ स्टडी सेंटर में आपको सबमिट करना है असाइनमेंट, तो असाइनमेंट आपको उससे भेज सकते हैं, जहाँ पे भी सेंटर आपको है अलर्ट हो जाएगा, आपको अलर्ट हो जाएगा, सेंटर दूसरा सेंटर हो जाएगा। सिर्फ आपको वो जो आपके असाइनमेंट है वहां पे भेज देने का, ठीक है? ओके सर। डोंट वरी, उसका कोई चिंता नहीं, ठीक है? पूजा थैंक यू तरवरे, सर। पूजा 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 तरवरे। नेक्स्ट हाँ, अमित। हेलो सर, हाँ, बोला। सॉरी फॉर बिंग लेट. सर, मी पहिले नागपूरला आहे माझं सेंटर, पण मला काही कारणास्तव दिल्लीला यावं लागलं इथं. आणि जे माझा प्रोग्राम आहे रिन्युएबल एनर्जी अँड एन्व्हायरमेंटल सायन्स, तर मला प्रॅक्टिकल रेग्युलर करावं लागेल ना, तर ते चेंज होईल का सर दिल्लीला? नाही, तुम्हाला रिजनल सेंटर, अगर कुठल्या रिजनल सेंटर मध्ये अगर हा प्रोग्राम असेल तर चेंज होते. तिथलं एनओसी घ्यावं लागेल. तुम्ही त्या रिजनल सेंटरला मेल करा, तुम्ही अगोदर बघा कुठल्या रिजनल सेंटरला आहे, स्टडी सेंटरला आहे, आणि तिथल्या रिजनल सेंटरला मेल लिहा, एनओसी द्या म्हणून. मग त्याच्यानंतर तो एनओसी आमच्याकडे येईल, मग आम्ही तुम्हाला एनओसी सर देईल. इन केस दिल्लीला नसेल, तर प्रॅक्टिकल रेग्युलर कसं करणार मी? माझं इथे सिलेक्शन झालंय दिल्लीला. अगोदरच सांगितलं तुम्हाला. मग आमचा सेंटर जर असेल तर तुम्हाला प्रॅक्टिकलला मात्र यावंच लागेल, ठीक आहे? सर, एक्झाम नाही म्हणत आहे मी, जे रेग्युलर प्रॅक्टिकल म्हटलंय ना. प्रॅक्टिकलच सांगतोय मी. एक्झाम तुम्ही दिल्लीमध्ये देऊ शकता. हा, एक्झाम तुम्ही दिल्लीत देऊ शकता, पण प्रॅक्टिकल ज्यावेळेस तुमचे शेड्यूल होतील त्यावेळेस तुम्हाला यावंच लागेल. किंवा ह्या वेळेस होत असेल, 2 वर्षाचा आहे ना तुमचा कोर्स, या वर्षी नसेल तर पुढच्या वर्षी करू शकता ना. हा, तसं मी तेच विचारणार होते की पॉसिबल आहे का नाही, की मी नेक्स्ट इयर ते कंटिन्यू करेन. पॉसिबल आहे ना, पुढच्या वर्षी पण करू शकते ना ती. करता येईल. एक्झॅक्टली करू शकतेस. काय चेंज करायची पण आवश्यकता नाही. तू टेम्पररी आहे का तिथं जाणार तू दिल्लीला? हा वर्ष आहे मी इथं यूपीएससी प्रिपरेशन साठी आहे मी. हे बघ, जेव्हा पण शेड्यूल येतील, पॉसिबल असेल तर अटेंड कर, नसेल तर पुढच्या शेड्यूल मध्ये तुम्हाला कंपल्सरी करावं लागेल. नाहीतर काय होते, मग ते तुमचं पुढचं म्हणजे सर, पुढचा शेड्यूल इन सेन्स की हा कंटिन्यू राहते की महिन्यातून एखादी वेळेस राहते असं? असते माहिती का, रिन्युअल एनर्जी म्हणजे कमी ऍडमिशन असतात. आपल्याला पण काहीतरी कन्स्टंट असतात किंवा 20 ते 25 काहीतरी विद्यार्थी लागतात आपलं प्रॅक्टिकल घ्यायला. मग तेवढे विद्यार्थी झाला की आपण शेड्यूल करतो, ठीक आहे? असं आहे, ठीक आहे? ओके. हेलो, अमित, बोलिए। नमस्ते सर, अमित बोल रहा था। सर, मैंने जुलाई में जो है M.Com में रजिस्ट्रेशन किया है, और मुझे डाउट ये है सर कि जैसे अगर मैं इस सेमेस्टर में एग्जाम में अपीयर, उनका कनेक्शन, अमित कोष्टा का कनेक्शन। हेलो सर। हाँ, बोलिए। हाँ सर, ये मैं जुलाई में M.Com के लिए रजिस्ट्रेशन किया है सर, और अगर मैं इस सेमेस्टर में अपीयर नहीं हो पाता हूँ एग्जाम में, तो मैं नेक्स्ट सेमेस्टर में पूरे दोनों सेमेस्टर के एग्जाम दे सकता हूँ? दे सकते सर। अच्छा सर, असाइनमेंट सपोज अगर मैं इस सेमेस्टर में अपीयर नहीं हो रहा, तो असाइनमेंट भी मैं नेक्स्ट टर्म में दे सकता हूँ या अभी ही देने होंगे इस सेमेस्टर के? डिपेंड ऑन यू। एक्चुअली अगर आपको सबमिट करना है तो कर सकते हो, या तो दोनों सेमेस्टर के असाइनमेंट्स आप आगे भी सबमिट कर सकते हो मार्च में। ओके 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 सर, यही डाउट था सर। थैंक यू सर। ठीक। नेक्स्ट खुशी वंजारी। यस, हेलो सर। हाँ, बोलो। सर, एमसीए ऑनलाइन वालों के प्रैक्टिकल्स भी ऑनलाइन ही होंगे ना? एमसीए ऑनलाइन वालों के प्रैक्टिकल्स? राजेश, नहीं, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकल का शेड्यूल जो है दोनों के लिए कॉमन होता है सर, लेकिन हमारी जो काउंसलिंग सेशन हुआ था उसमें बोला था कि प्रैक्टिकल्स ऑनलाइन ही होंगे, उसमें वाइवा वॉइस होगा और ऑनलाइन ही होगा, ऐसा बोला था उन्होंने। देखिए, होता तो है वो। हाँ सर। ऑनलाइन में अगर उतने स्टूडेंट्स हैं तो आपका ऑनलाइन भी हो जाएगा,
यस या तो फिर आपको ओडीएल के साथ में अगर जो स्टूडेंट है, मतलब जैसे आपका ओएल में 2 या 3 स्टूडेंट है, तो आप उनके साथ भी अटेंड कर सकते हो उसको फेस टू फेस में। बीड। हॅलो हाँ बोलिए ना। हॅलो श्वेता उपासे हो सर, मी एमकॉम ला ऍडमिशन घेतली आहे. मला एवढं विचारायचं होतं की असाइनमेंट जे द्यायचे आहे ते सेपरेट बुक वर लिहून द्यायचे आहे की पेजेस वर द्यायचे आहे? बुक्सची वगैरे गरज नाहीये त्याच्यासाठी. तुम्ही जे रूल पेपर आहेत ओके त्याचा एक सेट करून ते पण तुम्ही सबमिट करू शकता. वरचा पेज इंडेक्स, त्याच्यानंतर त्याच्या खाली तुमचा जो क्वेश्चन पेपर आहे जो तुम्ही सॉल्व्ह करणार आहात त्याची पण कॉपी लावणं त्या असाइनमेंट मध्ये गरजेचं आहे. त्याचं कारण असं आहे की इव्हॅल्युएटरला कळत नाही की तुम्ही कुठल्या सेशनची असाइनमेंट तुम्ही सबमिट केली आहे. तुम्ही जर का त्याच्यामध्ये ती लावली तर त्याला पटकन चेक करून त्याचे मार्क्स अपडेट करू शकतो. ठीक आहे. हा तो स्टेपलर लक्ष्मीकांत देशटवार जी सर नमस्ते। एक डाउट था। हाँ बोला। लाइक जैसे हम लोग का जो प्रैक्टिकल है वो तो अभी 3rd सेमेस्टर में ही होता है ना, जो एमबीए का होता है? फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में हम लोग को सिर्फ एमबीए का एचआर लिया है मैंने। अच्छा, तो उसका जो प्रैक्टिकल होता है उसमें प्रैक्टिकल तो है नहीं, प्रोजेक्ट है 3rd सेम में। हाँ मतलब हाँ वही सिर्फ प्रोजेक्ट होता है 3rd सेम में, और तो मतलब इसमें कोई प्रैक्टिकल ये सब नहीं होता है ना? प्रैक्टिकल नहीं है ना, प्रोग्राम में प्रैक्टिकल नहीं है आपके। सिर्फ एक प्रोजेक्ट है 3rd सेम में। 3rd सेम में ना? हाँ ओके सर, ठीक है, तो थैंक यू। उसको तो आपको सेंटर में जाकर आपको गाइडेंस लेना पड़ेगा एकेडमिक काउंसिलर से। ओके 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 सर, ठीक है। हाँ। निविदा बनसोडे हॅलो सर। हाँ बोल सर बोला। मी एन्व्हायरमेंट सायन्सला घेतलंय मी, तर मला एवढंच विचारायचं होतं की माझं स्टडी सेंटर इथे नागपूर दाखवतंय, मी राहते पुण्याला. तर मग मला जर मटेरियल म्हणजे असाइनमेंट सबमिट करायची असेल तर म्हणजे तर पुण्यामध्ये स्टडी सेंटर नाहीये का? आणि जर नागपूरला सबमिट करायचे असेल तर बाय पोस्ट करू शकते का मी, का तिकडे फिजिकली येऊन द्यावं लागतं? बाय पोस्ट करू शकता तुम्ही। बाय पोस्ट करू शकते का? हॅलो हाँ बाय पोस्ट पाठवू शकता तुम्ही, बाय पोस्ट सबमिट करू शकता बिफोर 31st ऑफ ऑगस्ट। ओके। आणि पुण्यामध्ये स्टडी सेंटर नाहीये का सर, म्हणजे चेंज करायचं असेल मला तर? अहो तुम्ही ज्या स्टडी सेंटरला ऍडमिशन घेतले त्या स्टडी सेंटरला असाइनमेंट द्यायचे. तुम्ही जर तिथं घेतला तर एक तर ते लोक घेणार नाहीत, घेतले तर कुठं फेकून देणार तुम्हाला. असं चालेल का? नाही सर, तुम्ही मगाशी म्हटलात की रिजनल सेंटर आणि स्टडी सेंटर 2 वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. रिजनल सेंटर जर तुमचं नागपूरचं आहे तर स्टडी सेंटर पण मला देताना नागपूरचं अलॉट झालेलं आहे, जे की मी सिलेक्ट केलेलं नव्हतं ना, ते म्हणून विचारते सर. मी काय म्हणतो नाही तुम्हाला ऐका ना, तुम्हाला काय पुण्याला घ्यायची ट्रान्सफर? नाही पुण्यामध्ये होऊ शकतं का हे विचारते सर, बस माझं एवढंच. म्हणजे काय नाही, आहे तशी सोय का मग नागपूरला जावं? नागपूर तुम्ही चूज केलेलं आहे, हा तर नागपूरलाच तुम्हाला सबमिट करायला लागतील, कारण त्याचा जो ऍक्सेस आहे तुमच्या याचा ऍडमिशनचा तो फक्त रिजनल सेंटर नागपूरकडे आहे. जर तुम्हाला चेंज करायचं असेल पुण्याला तर तुम्ही चेंज पण करून घेऊ, ठीक आहे. दुसरा एक पार्ट असा आहे की तुम्ही पाहिजे तर एक्झामिनेशन फॉर्म पुण्यातून भरू शकता, एक्झाम पाहिजे तर पुण्यातून देऊ शकता. अच्छा, पण असाइनमेंट तुम्हाला जिथे सेंटर तुम्ही चूज केलेलं आहे तिथेच सबमिट करायला लागतं. ठीक आहे. जयदीप बोरवाडकर. नमस्कार सर। सर मी मास्टर ऑफ सायन्स जिओ इन्फॉर्मेटिक्स करत आहे. प्रॅक्टिकलची फक्त एक्झामच नागपूरला होते ना सर, का प्रॅक्टिकल्स पण असतात अशामध्ये काही? हॅलो राजेश देशपांडे जी, हॅलो. त्याचे प्रॅक्टिकल सेशन नागपूरला होईल आणि प्रॅक्टिकल एक्झाम सुद्धा नागपूरला होईल, तर त्यासाठी तुम्हाला यावं सर प्रॅक्टिकल सेशन हे मग काय? ओके, पण
पण ते किती 5-10 दिवस वगैरे असतं का एकाच दिवशी सर्व एक्झाम आणि प्रॅक्टिकल असतं असं विचारत होतो. एका दिवशी नाही, जवळपास 4-5 दिवसाचं राहतात ते. झाला वाटते. ओके, म्हणजे आम्हाला तिथून स्टे करायला राहायला लागेल ना सर तिकडे? हो यावं लागेल तुम्हाला. ठीक आहे. ओके, मग आम्ही 4 दिवस तिथं प्रॅक्टिकल पण करायचं आणि मग एक्झाम पण तिकडे यायची त्यानंतर, बरोबर ना? हो. ओके सर, ओके थँक्यू सर, थँक्यू. नेक्स्ट मोहम्मद जिशानजी आदित्य मोहद. हॅलो, हो सर. हा बोला. माझी MPSC 04 असाइनमेंटचे मार्क्स नाही टाकलेले गेले सर, अजून अपडेट झालेले नाहीये. कधी सबमिट केलं होतं तुम्ही? सर हे यावर्षीच होतं ना, नाही, म्हणजे कधी आता सबमिट? असाइनमेंट जेव्हा सबमिट करत असतात तेव्हा सबमिट केल्या, सगळे झालेले आहे, सगळ्याचे मार्क्स आले, पण एकच सब्जेक्ट जो आहे MPSC 04 या एकाच सब्जेक्टचे मार्क्स अजून आलेले नाही आहेत सर याच्यात असाइनमेंटचे. अच्छा, तुम्ही एक RC नागपूरवर एक मेल टाकून द्या. मेल टाकला सर, मी मेल टाकलाय सर. टाकलाय का? हो. ठीक आहे ना, येऊन जाईल शॉर्टली तुम्हाला. हॅलो, मेल टाकले ना, हा, ठीक आहे. तुम्हाला रिप्लाय येऊन जाईल म्हणलं रिजनल सेंटर मधून. अच्छा ठीक आहे सर, थँक्यू. कदाचित काही वेळेला इव्हॅल्युएशनला वेळ लागतो असाइनमेंटच्या. अच्छा. हा, म्हणून तो वेळ. वैष्णवी शेंडे. हेलो सर, एम आई ऑडिबल? यस. गुड इवनिंग। मुझे ये पूछना था कि जब हमारी थ्योरी एग्जामिनेशन होगी उसका मतलब एग्जामिनेशन सेंटर मिलेगा और स्टडी सेंटर ओनली वी हैव टू गो फॉर सॉल्विंग थ्योरी पेपर? हेलो राजेश, क्या डाउट है आपका? सर वो थ्योरी एग्जामिनेशन स्टडी सेंटर में ही जाकर देनी पड़ेगी और वी विल हैव टू गो समवेयर एल्स? कोई और सेंटर मिलेगा एग्जामिनेशन? देखिए एग्जाम फॉर्म फिलअप करते वक्त आपको एग्जाम सेंटर ऑप्ट करना है, ठीक है? स्टडी सेंटर में एग्जाम नहीं होती। आपका प्रोग्राम क्या है? MSc एनवायरमेंट। हाँ, MSc एनवायरमेंट के लिए इस बार जो आपका स्टडी सेंटर है वही एग्जाम सेंटर है, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। यस। अगर आपको नागपुर में एग्जाम देना है तो हाँ, यस, नागपुर ओनली। आप कहीं एग्जाम फॉर्म फिलअप हाँ। ओके सर। अनुष्का डोंगरे. हॅलो सर, एम आय ऑडिबल? येस. सर, मला विचारायचं होतं की आमची जी असाइनमेंट रिसिप्ट आहे तर त्याची कॉपी आणि एक्झाम फॉर्मची कॉपी हे रिजनल सेंटरला सबमिट करायची आहे का? नाही. आणि आणखीन एक डाऊट होता, जे आमची एक्झामच्या आन्सर शीट्स राहतील तर त्याच्यात केवढे पेजेस राहणार आहे? 27-28. अच्छा, आणि मग सप्लिमेंट भेटतील? एक्झाम मध्ये सप्लिमेंट मिळत नाही, त्यामुळे तुम्हाला जे मेन आन्सर बुक मिळेल त्यामध्येच तुम्हाला तुमचा पूर्ण एक्झाम कंप्लीट करायचा आहे. अच्छा. त्यामुळे एक्झाम देताना खूप जागा सोडायची नाही, बरोबर? ओके, तर 24 किंवा 26च्या जवळपास राहतं ते. अच्छा, ओके सर. ठीक आहे. नाही गेलं बाबा, 17,787 रिजेक्टेड. दुसरं 5,000. हेलो, नेक्स्ट अली, मिस्टर अली. हेलो सर। हाँ अली, हाँ बोल रहे सर, मैंने लेट ज्वाइन किया है, क्या इसका मैं रिकॉर्डिंग से मिल सकता है? रिकॉर्डिंग आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, उसमें आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, ठीक है? मैंने किया, दूसरा यूट्यूब चैनल है जी। अभी चार्ट बॉक्स में आपको सब कुछ लिंक दिया हुआ है, वो देख लीजिए, ठीक है? ठीक है सर, वो क्वेश्चन था प्रैक्टिकल का
वो नहीं आप एग्जाम क्वेश्चन कुछ मत पूछिए क्योंकि आप लेट ज्वाइन किया है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, सर वो वो वीडियो देख लीजिए। नहीं नहीं प्रैक्टिकल का सर पूछना था क्योंकि हम लोग का असाइनमेंट और प्रैक्टिकल और वो एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहता है, इन्हीं में डाउट था। तो असाइनमेंट तो जमा करना था, मैंने गूगल से वो एड्रेस लेके पार्सल कर दिया है बाई पोस्ट, तो वो चलेगा ना? तो चलेगा इसलिए ना? तो मैं आपको बोल रहा हूँ ना आपको कि पूरा देखा असाइनमेंट नहीं आपने। नेक्स्ट हरीश, हरीश हरीश का हो गया ना? रश्मिदास, रश्मिदास। हाँ सर, सर मेरा एक क्वेश्चन था हाँ असाइनमेंट से रिलेटेड। हाँ सर मैं जब मैंने असाइनमेंट एडमिशन किया है तो तब मैंने स्टडी सेंटर चंद्रपुर का डाला है और रीजनल सेंटर नागपुर का। तो जब मतलब एडमिशन जब कंफर्मेशन का जब मैसेज आया है तब स्टडी सेंटर और रीजनल सेंटर दोनों भी नागपुर का आया है। तो मैंने असाइनमेंट चंद्रपुर में सबमिट किया है, तो एक्सेप्ट होगा वो मेरा? हेलो राजेश। हाँ, प्रोग्राम क्या है आपका? BCA। ठीक है, तो ठीक है, बट नेक्स्ट टाइम से आपको ये ध्यान में रखना है, आपको असाइनमेंट नागपुर में ही सबमिट करना है, ठीक है? चंद्रपुर तो अभी सेंटर अभी फिलहाल तो बंद हो गया है। तो फिर पेपर के वक्त एग्जाम दे सकते आप हैं। उधर चंद्रपुर में दे सकते हैं, एग्जाम का कोई इशू नहीं, बट नेक्स्ट टाइम से आपको आपके असाइनमेंट नागपुर में ही सबमिट करना है, ठीक है? सर बट अभी मैंने तो सबमिट कर दिया है, तो फिर अब एक बार आप वहां पे विजिट करके देखिए, अगर वहां से इवेल्युएशन हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो उनसे कलेक्ट करके आप रीजनल सेंटर नागपुर को भेज दीजिए। अच्छा ठीक है। ठीक है प्राची। हेलो सर। हाँ सर मुझे ये पूछना था, मेरा स्टडी सेंटर अमरावती है तो मुझे असाइनमेंट अमरावती में ही सबमिट करनी है ना? हाँ। थैंक यू सर। अबे 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 कौन है अबे? हाँ बोलिए, बोलिए ना, बोलिए अबे जी, बोलिए। Hello, sir. हाँ Sir, I have taken the admission in PG later. Sorry that we have to submit the policy notice by the end of October 31st. आपका आवाज ब्रेक हो रहा है, जरा बाद में कीजिए ना, ठीक है? हर्षल। Compulsory that we have to submit the project synopsis by 31st October. राजेश। आपका प्रोग्राम क्या है? हेलो। MSc Geo Informatics. आप प्रोजेक्ट गाइड एक बार देखिए मैम, उसमें वो डेडलाइन दिया हुआ है। And one more doubt, sir, is should we? आवाज आपका कट submit हो the रहा है मैम। project synopsis? आपका आवाज कट रहा है, ठीक है, प्लीज बाद में कीजिए ना। निधि सिंह, निधि सिंह। यस सर। सर एक्चुअली दिसंबर टर्म एंड एग्जाम के लिए मैंने एग्जाम सेंटर पुणे दिया था, तो क्या मेरा प्रैक्टिकल एग्जाम भी वही हो सकता है या मुझे उसके लिए नागपुर आना होगा? प्रोग्राम क्या है आपका? MSc एनवायरमेंटल साइंस। नागपुर में ही रहेगा मैम। अच्छा, तो एग्जाम और सेशंस दोनों? थ्योरी एग्जाम आप उधर दे सकते हैं, बट प्रैक्टिकल एग्जाम, प्रैक्टिकल सेशन वो नागपुर में होंगे। अच्छा ओके सर, थैंक यू। प्रतीक बालाजी। Hello. Yeah, good evening, sir. हाँ Sir, actually, I am doing MSc in Geoinformatics. Okay. Sir, actually, I have given exam in
regional center only because study center was not available at that time. Hello. हाँ बोलिए ना. Yes, sir. So we have given exam in regional center itself. So when, where it will be, sir? In upcoming session. आपने एग्जाम सेंटर एग्जाम फॉर्म सबमिट किया? Yes, sir. और एग्जाम सेंटर आपने कहाँ पे ऑप्ट किया है? For theory exam, in my native only, sir. But for practical, there will be no option. प्रैक्टिकल नागपुर में होगा सर. Yes, yes, okay. I mean, it was conducted in regional center last time. So I'm asking whether it will be in study center or regional center, sir. नहीं, ये MR SAC में होगा. एक सेंटर है हमारा. जनरली प्रैक्टिकल एग्जाम हम वहाँ पे प्लान करते हैं. ठीक है. उसका डिटेल आपको मेल पे आ जाएगा. जब भी प्रैक्टिकल एग्जाम होगा या प्रैक्टिकल सेशन कंडक्ट किया जाएगा, उसका डिटेल आपको मेल पे आ जाएगा. ओके सर. सर एक्चुअली एक और क्वेरी है सर. हाँ सर एक्चुअली व्हेन आई मीन कब हम एडमिशन लिया था एमएससी के लिए, एक ऑप्शन था. उसमें था प्रोजेक्ट के बदले में हम 2 इलेक्टिव चूज कर सकते हैं. बट अभी वो ऑप्शन नहीं मिल रहा है सर. उसमें क्या कर सकते हैं? मतलब अभी प्रोजेक्ट करना वो दिक्कत होता है. हाँ सर. आप प्रोग्राम गाइड को लिखिए. जो बेनीधर देशमुख सर है उनको आप मेल भेजिए इसके बारे में. ओके सर. ओके. हर्षलिन कौर. यस सर. मतलब मेरी एडमिशन इसमें एमएससी जियो इन्फॉर्मेटिक्स, इसमें स्टडी सेंटर पुणे स्टडी सेंटर नागपुर में ही दिखा रहा है. तो जो असाइनमेंट है मुझे वहीं पे सबमिट करना है. फर्स्ट की कंफर्मेशन चाहिए. सेकंड इसकी मतलब जैसे आप कह रहे थे बाय हैंड देना है तो रिसिप्ट मिलेगी. तो इसका कैसे पता चलेगा अगर मैं बाय पोस्ट भेजूंगी कि ये रिसीव हो गया मेरा असाइनमेंट? कंफर्मेशन कैसे पता चलेगा? आप एक मेल यहाँ पे भेज सकते हैं स्पीड पोस्ट से भेजने के बाद. मतलब आप मुझे उसमें मेल पे कंफर्म करोगे कि आपको मिल गया है असाइनमेंट? हाँ देखिए, स्पीड पोस्ट से भेजने के बाद 4-5 दिन के बाद एक बार यहाँ पे आपको कांटेक्ट करना है या फिर आप मेल भेज सकते हैं. तो हम चेक करके आपको इन्फॉर्म कर सकते हैं. एंड सर मैं जैसे पुणे बेस्ड हूँ तो मैं एग्जाम जो उसमें फॉर्म फिल करना है उसमें मैं थ्योरी के एग्जाम पुणे में मतलब दे सकती हूँ. मुझे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी? दे सकते हैं. एग्जाम आप ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी दे सकते हैं. ठीक है. ओके. अब ये लास्ट क्वेश्चन था. अभी थैंक यू वेरी मच. वी बी टच विथ आवर सोशल मीडिया. वी आर पोस्टिंग ऑल द नोटिफिकेशन टू द ऑन द सोशल मीडिया. थैंक यू वेरी मच. राजेश, रिकॉर्डिंग बंद कर.